how to uh, learn the lessons in leadership and management from the Vedic scriptures. और इनफैक्ट एक प्रॉपर कोर्स भी चल रहा है आज IIM अहमदाबाद के अंदर, और मैं हर साल इस कोर्स को पढ़ाने के लिए अहमदाबाद आता हूँ. अब तो for 2 साल से ऑनलाइन चल रहा था, लेकिन वैसे मैं अहमदाबाद हर साल आया करता था जनवरी के महीने में, क्योंकि वहाँ पर एक कोर्स होता है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट सूत्रास फ्रॉम दी भगवद गीता. अभी फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है जिसमें हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं. इवन इंटरनेशनली देयर आर CEOs एंड CFOs एंड चेयरपर्सन्स जो कि आज इस कोर्स को कर रहे हैं और सीख रहे हैं. और इसका फीडबैक इतना अच्छा है कि अब हम नाउ वी आर क्रिएटिंग मोर टीचर्स टू टीच दिस कोर्स. सो निश्चित रूप से बहुत कुछ सीखने को है वैदिक स्क्रिप्चर से, नो डाउट. अल्टीमेटली द मैसेज इज दैट ऑफ भक्ति, लेकिन इसके अलावा भी अगर हम बहुत कुछ सीखना चाहें तो सीख सकते हैं फ्रॉम द वैदिक स्क्रिप्चर्स. So before I begin, I just offer some prayers and then we will start. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana-Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasani Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. तो हमारे जो वैदिक शास्त्र हैं, यूजुअली जो टर्म उनके साथ लगाई जाती है वो है माइथोलॉजी. As per Hindu mythological text, so and so. As per Hindu mythological text. अब usually जो term है mythology, इसका origin है in the term myth, यानी कि कल्पना. शास्त्र क्या है? ये कल्पना है, ठीक है. But actually ये mythology term किससे आए? ये इंडोलॉजिस्ट जब इंडिया में आए थे, उन्होंने term coin की. उससे पहले कोई भी ये term, ये mythology term इस्तेमाल नहीं करता था. Because when the Britishers came to India, उन्होंने देखा कि अगर हमें इस देश को गुलाम बनाना है, पहली बात तो रिपोर्ट में लिखा था इस देश को गुलाम बनाना असंभव है. They cannot be conquered. Why? Because they have very high ideals in their life. अच्छा, इनके ideals मतलब कहाँ से आते हैं? इनके गुरु से आते हैं और साथ ही scripture से आते हैं. सबसे पहले तो we are to convince the Indians that their scriptures are just mythological text. ये सिर्फ काल्पनिक किताबें हैं और कुछ नहीं है. And we are to tell them that our way of education is better than their way of education. अगर इस बात के लिए उनको कन्विंस कर देंगे, then we can conquer India. Otherwise, it was also mentioned that we have not seen a single beggar in India from north to south, from east to west. We have not seen a single beggar. यहाँ पर कोई दुखी था ही नहीं. But once we started giving up our culture, especially in terms of Vedic scriptures, तो उसके बाद आज इंडिया का देखते हैं क्या हाल हो गया. आज इंडियंस क्या है, भले कितना कोशिश करें, इंडियंस they cannot become Americans. भले हम फटी जीन्स पहने, बाल ब्लीच कराएं, उल्टी सीधी अंग्रेजी बोले, बट इंडियंस कैन नॉट बिकम अमेरिकन्स. हम लोग नहीं बन सकते. और इंडियंस हम रहे नहीं, तो हम बीच में टंग गए. तो यहाँ इंडियंस का हाल है. बट यस, वी आर टू गो बैक टू आवर स्क्रिप्चर्स, और स्क्रिप्चर्स के अंदर बहुत कुछ किया है. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लीडरशिप एंड मैनेजमेंट सूत्रास फ्रॉम द होली स्क्रिप्चर्स, especially like Bhagavad Gita, Ramayana. So much to learn, actually, so much to learn. In fact, in 2018, some group of students have found out that among the various qualities which a leader should have, one of the qualities is that a leader should be happy. जैसे कॉर्पोरेट बोलते हैं ना, the shit flows from the top. सुना आपने? The shit flows from the top. अगर ऊपर का आदमी दुखियारी आत्मा है, वो नीचे सबको दुखियारी आत्मा बना देगा वो, because दुख फ्लो करता है. So the shit flows from the top. पर साथ ही ये बोला जाता है, nectar also flows from the top. यानी कि लीडर अगर बहुत आइडियल है, so that idealism flows into entire organization. So nectar also flows from the top. And that's what Lord Krishna says in the Bhagavad Gita. It is Raj Vidya Raj Guhyam. It is Raj Vidya. That means this knowledge is meant for the leaders, Raja, for the kings. This knowledge is meant for them. अगर ऐसे leaders अगर होते हैं, then everything goes very nicely. अच्छा, if I ask you, what are the qualities we expect in a leader? Let's hear something from you. बताइए, what are the qualities? लीडर के अंदर ये फला फला क्वालिटी होनी चाहिए. हाँ जी, good character, very good. In fact, it is said a leader must have vision and good character. And out of the two, if he is to compromise one, he may compromise vision, but not character. लीडर का character गया, सब गया. Yes, तो character बड़ा जरूरी है जी. अगर बताते हैं हमारा फला फला लीडर है, वो किसी को लाइन मारता है, किसी को स्क्वायर मारता है, किसी को सर्कल मारता है, अरे ये तो सब बहुत गड़बड़ बात है. सो कैरेक्टर होना बड़ा जरूरी है. वेरी गुड. और करेज, हिम्मत ही होना चाहिए. वेरी नाइस. और
डिसिप्लिन होना चाहिए उसको, वेरी गुड। और आत्मविश्वास होना चाहिए उसके अंदर, यस। मोटिवेटिंग होना चाहिए उसको, वेरी गुड। रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला लेने वाला होना चाहिए, वेरी नाइस। और सैक्रिफाइसिंग होना चाहिए, वेरी गुड। He should be a good communicator, yes, very good। और क्रिएटिव होना चाहिए उसको, वेरी गुड। और प्रोएक्टिव होना चाहिए उसको, वेरी गुड। कमिटेड होना चाहिए, मतलब लीडर साहब की ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है। नाइस। नाउ इफ आई आस्क यू, प्रोएक्टिव होना वैल्यू है, नॉलेज है या स्किल है? once again knowledge। so let's start once again। डिसिप्लिन होना ये एक स्किल है, नॉलेज है या वैल्यू है? वैल्यू है, यस, वेरी गुड। अच्छा, कोऑपरेटिव होना, यू नो सेंस ऑफ कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव होना ये वैल्यू है, नॉलेज है या स्किल है? कोऑपरेटिव होना वैल्यू है, वैल्यू है, यस, वेरी गुड। अच्छा, और हमें जवाब देना, ही शुड बी मोटिवेटिंग टू अदर्स। ये जो मोटिवेटिंग होना है ये एक वैल्यू है या स्किल है या नॉलेज है? मोटिवेटिंग होना स्किल है, मतलब ऐसे हाथ हिला कर मोटिवेट कर लेंगे हम लोग। नॉलेज है, वैल्यू है, वैल्यू है। अच्छा, और हमें क्या जवाब देते हैं? ही शुड बी करेजियस। करेजियस होना ये वैल्यू है, नॉलेज है या स्किल है? वैल्यू है। अब देखो ज्यादातर क्वालिटीज कहां जा रही है? अब की बार मोदी सरकार, वैल्यू सरकार। तो लीडर के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी है वैल्यूज। अगर लीडर में वैल्यू गई तो सब गया। आप देखो जितने कई बहुत बड़े जीनियस लोग हैं ना, दे डू लॉट ऑफ स्कैम्स अगर उनमें वैल्यूज नहीं होती। ऐसे बहुत पहले कॉर्पोरेट्स के अंदर ना, जब साइकोमेट्रिक टेस्ट हुआ करता था जिससे हम लोगों को लेंगे। अदर साइकोमेट्रिक टेस्ट कौन ना, साइकोमेट्रिक टेस्ट एक टेस्ट होता है जिसको भरा जाता है, उससे पता लगता है कि ऐसे व्यक्ति को हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले कॉर्पोरेट्स के अंदर जो साइकोमेट्रिक टेस्ट हुआ करते थे, दे वर बेस्ड ऑन स्किल्स, आईक्यू। जिसकी आईक्यू अच्छी होगी उसको हम लेंगे ऑर्गेनाइजेशन में। और जब ऐसा हुआ तो हमने बड़े बुद्धिमान लोग लिए। इन बुद्धिमान लोगों ने सबसे बढ़िया स्कैम किए, क्योंकि बुद्धिमान लोगों को पता होता है कहां पर क्या कैसे खेल खेलना है। क्या सर चिंता होता है सर, हमारे को छोड़ो सर, मैं आपको क्या करना है। Like one chartered accountant, he wrote a book, 101 ways to convert black money to white money। और ये किताब इतनी बिकी थी, मतलब जब इस पे गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, फोटोकॉपी होकर बिकी। क्योंकि इस व्यक्ति के अंदर क्या है, जीनियस, पर इस व्यक्ति के अंदर वैल्यूज नहीं है। तो इससे आपको दुनिया में जितने भी स्कैम हुए ना, जीनियस लोगों ने किए, जिनका आईक्यू वाज वेरी गुड। तो कॉर्पोरेट में बड़ा दिक्कत हुई यार, ये तो बहुत स्कैम करते हैं लोग, इन लोगों का इमोशंस नहीं है इनके अंदर। So a new psychometric test was now there in corporates. It was more based on EQ. EQ मतलब इमोशनल क्वेश्चन। जैसे कुछ आप में इंसानियत है तुम्हारे अंदर, गंदे आदमी, तो इमोशनल क्वेश्चन को लेकर के नया साइकोमेट्रिक टेस्ट आया। कहता है भैया आईक्यू को हम देख लेंगे यार, पहले इस आदमी के अंदर इंसानियत होनी चाहिए। तो ये बड़ा अच्छा हो गया, बड़े अच्छे लोग हायर होने शुरू हुए। लेकिन ना इमोशनल वालों के साथ भी बड़ी दिक्कत थी। जब इमोशंस में इतने बह जाते हैं कभी कभी कि काम से बहुत हट जाता है इतना। कोई इनको छोड़ गया है, छोड़ गई, व्हाटएवर हो गया इनके साथ, उसके बाद ऐसे दुखी हो जाएंगे, बस इधर भी काम करना है, बस क्या करें सर, काम बस छोड़िए सर, अब क्या यार। ईक्यू वाले के साथ बहुत दिक्कत हो रही है, मतलब आईक्यू वाले के साथ अलग दिक्कत थी, ईक्यू वाले के साथ अलग दिक्कत। अब जो लेटेस्ट जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है जो कि डिजाइन हो रहा है टॉप नॉच कॉर्पोरेट्स, वो है एसक्यू, यानी स्पिरिचुअल कोशेंट। स्पिरिचुअल कोशेंट से हमारे इमोशंस समझ आते हैं और इमोशन से हमारी इंटेलिजेंस समझ आती है। तो 3 लेवल, तो आईक्यू का होना जरूरी है, ऐसा नहीं हमें एकदम बुजुर्ग चाहिए, आईक्यू होना जरूरी है, पर आईक्यू को जाता है ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल गोज टू ईक्यू एंड गोल्ड मेडल गोज टू एसक्यू, स्पिरिचुअल कोशेंट। अगर स्पिरिचुअल कोशेंट नहीं होता, ऐसे लोग जहां अपने आप को नहीं समझ पाते। लेकिन लीडर के लिए बहुत जरूरी है अपनी इंद्रियों पे वश होना। जब उसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं होती तो ही किसी को कुछ गलत सलत बोलता है, राइट। लॉर्ड कृष्ण से इन भगवद गीता अनुद्वेगम करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत
यानी कि वाणी का वेग कैसा होना चाहिए, वाणी कैसे संभाले भाई? सबसे पहली बात है अनुद्वेगम, दैट मींस द लीडर शुड स्पीक इन अ वे व्हिच इज अनुद्वेगम, जो कि उद्वेग ना करे, हलचल। अगर आपने ऐसी वाणी बोल दी भाई सामने वाले का ऐसी तैसी हो गई, आपको लगता है काम हो पाएगा? नहीं। सो लीडर के लिए बहुत जरूरी है, तो बताया ना, ही शुड बी अ गुड कम्युनिकेटर, राइट? सो कम्युनिकेशन में पहली बात आती है, स्पीक द वर्ड्स व्हिच आर नॉट एजिटेटिंग, स्पीक द वर्ड्स व्हिच आर नॉट एजिटेटिंग। दूसरा क्या आता है, सत्यम, दैट मींस इट शुड बी ट्रूथ, सच बोलना चाहिए। अच्छा, सच भी कौन सा बोलना चाहिए? जो उसके हित का हो। अच्छा, जो उसके हित का हो, लेकिन कैसा होना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए उसको? प्रियम। कड़वे सच को भी बोलने का तरीका होता है। अच्छा, तो ये चार चीजें होनी चाहिए वाणी में। क्या क्या चार क्वालिटीज? अनुद्वेगम, दैट मींस वी शुड बी नॉट एजिटेटिंग। दूसरा सत्यम, प्रियम एंड हितम, ये चार क्वालिटीज है। तो बोल सकते हैं, अरे भाई ये तो बहुत डिमांडिंग हो गया भाई, इतना हम पहले सोचे कि मैं जो बोलने वाला हूँ नॉट एजिटेटिंग, और दूसरा इतना सोच सोच के बोलने लगे तो हमारा तो काम हो गया। उसके लिए फिर देन भगवद गीता सेज द फिफ्थ क्वालिटी, fifth quality is that swadhyayam, that means reciting the Vedic scriptures. जब रिसाइट करते हैं ना, हमारी वोकैबुलरी वैसी बनती है। जब हमारी वोकैबुलरी वैसी बनती है तो हम जो बोलते हैं उससे वही शुद्ध जाते हैं। अब वापी में तो खैर आपको हाँ बहुत शरीफ लोग रहते हैं और अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मैं दिल्ली से आ रहा हूँ और मैंने कॉर्पोरेट में काम भी किया हुआ है। मैं 6 साल एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैंने काम किया हुआ है, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर मैंने काम किया है। माय गॉड, सीईओ और सीएफओ जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, आप हैरान रह जाएंगे। ये वो लोग हैं जिनका पैकेज 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ का है। जो इनके मुंह से निकलता है ना, हैरान हो जाएगा। सर आप यस आई एम बी फ्रॉम सच एंड सच, और सर आपके मुंह से कहते हैं हाँ ये थोड़ा बहुत चलता है और क्या। और एफ वाला शब्द तो इतना कॉमन है, मैं बोल नहीं सकता उसके जन्मवादी को। बड़े 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 ये दिग्गज लोग बोलते हैं ये वाले शब्द। पर शब्द क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी वोकैबुलरी हुई है। जब वोकैबुलरी ये होगी तो सफिक्स में, प्रीफिक्स में, बीच में आदि अंत्य मध्य च गाली ही उच्चते, क्योंकि वोकैबुलरी हुई है, शब्दकोश ही वही बना हुआ है। और इसे देखिए, जितने ज्यादा शब्द हमें घाव देते हैं उतना हमें कोई तीर भी घाव नहीं देगा। अगर आपको तीर लग जाएगा ना, आप क्या अंधे यार पता नहीं चला तुम्हें, और घाव भर जाएगा, एक हफ्ते में घाव भर जाएगा। लेकिन शब्दों के तीर हमेशा याद रहते हैं। सर आपको याद है 6 साल पहले आपने मुझे मीटिंग बुला के क्या बोला था? सर वो शब्द मैं भूल नहीं सकता सर, वो सर मैं, होता है सर, होता है। बॉस बोले, पति बोले, पत्नी बोले, कोई बोले, सब याद रहता है। वाइफ को तो हमेशा याद रहता है, बिल्कुल याद रहता है। हस्बैंड वाइफ में जब भी झगड़ा होता है ना, हस्बैंड क्यों हारता है पता है? बिकॉज हस्बैंड फाइट्स विदाउट डेटा। बट वाइफ हैज ऑल द डेटा। वो 2005 का डेटा भी उसके पास। ये 2021 आ गया भगवान, सारा डेटा यार। 2011 में क्या क्या था, 2012 में क्या क्या था, जनवरी का महीना था, रात के 11:30 बज रहे थे मुझे याद। शी फाइट्स विद डेटा। सो इसीलिए बहुत जरूरी है शब्दों का चयन। जैसे कॉर्पोरेट में बहुत फेमस स्टेटमेंट है, पीपल डू नॉट लीव ऑर्गेनाइजेशन, पीपल लीव बॉसेस। लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं छोड़ते, अपने बॉस को छोड़ते हैं। जो पेच कसरा होता है ना, तो पेच कसना कहता है बस वी क्विट। तो इससे सही शब्दों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। Either say we do not communicate words, we communicate consciousness. We do not communicate words, we communicate consciousness. तो इससे बहुत जरूरी है लीडर के अंदर वैल्यूज होना। जब वैल्यूज अच्छी होती है ना, उस वैल्यू ड्रिवन भावनाओं के साथ अगर कोई कड़वे शब्द बोलता है, लोग उसको बुरा नहीं मानते। जैसे माता पिता का कहने का बुरा नहीं मानते। माँ भली बोले तू गधा है, तू बेवकूफ है, भली माँ ये याद बोले तू मर क्यों नहीं जाता, इवन देन बुरा नहीं मानते। कभी बोला माँ तो बोल दिया मर जा, मर जाओ, तो माँ ने बोल दिया, लेकिन उसके पीछे भावना बड़ी अच्छी होती है। और अगर किसी बोले अरे तो सती सावित्री है, शब्द अच्छे हैं लेकिन भाव कैसे हैं? बस आज जो आपने हमारी बेइज्जती की, कहते हैं सती सावित्री बोला था, बुरा क्यों मान लिया? ऐसा उसके पीछे आपके भाव क्या थे? So that means we do not communicate words, we communicate words of course, लेकिन वर्ड से ज्यादा क्या है?
तो डीलिंग्स हमारी तब अच्छी होती हैं जब हमारी फीलिंग्स अच्छी होती हैं, ठीक है जी। मेरे अपना राइट हैंड दीजिए सब, एवरीवन टेक योर राइट हैंड, बोलिए। आपकी डीलिंग्स अच्छी होती हैं जब आपकी फीलिंग्स अच्छी होती हैं। आपकी डीलिंग्स अच्छी होती हैं जब आपकी फीलिंग्स अच्छी होती हैं। आपकी डीलिंग्स अच्छी होती हैं जब आपकी फीलिंग्स अच्छी होती हैं। जब फीलिंग गंदी होगी ना तो डीलिंग भी गड़बड़ होगी ही होगी। और लीडर के लिए सबसे सेंसिटिव है डीलिंग्स। लीडर फंसता ही है बिकॉज ऑफ डीलिंग्स। दो टर्म है, एक है लीडर, एक है मैनेजर। दोनों में से किसका रोल ज्यादा सेंसिटिव है और क्यों? कौन बताएगा? क्यों ऐसा कैसे हुआ? क्यों ऐसा? क्या खास बात है? मैनेजर तो काम करता है बेचारा। बताइए जी, दोनों में किसका रोल ज्यादा सेंसिटिव है? कौन बताएगा? यस, रेज योर हैंड। है जी, लीडर। लीडर। क्यों? पक्का इरादा और डिसिप्लिन। अच्छा, उसका पक्का इरादा, मतलब मैनेजर को पक्का इरादा भी नहीं होता ना डिसिप्लिन होता, ठीक है। और मैनेजर जीएम से इन्फ्लुएंस होता है। मैनेजर लीडर से इन्फ्लुएंस होता है नहीं, जीएम से वो उसका जो सीनियर रहता है उससे इन्फ्लुएंस रहता है। और लीडर से इन्फ्लुएंस लीडर नहीं से होता। नहीं, लीडर क्या नहीं होता किसी का। मास से। ओके, गुड अटेम्प्ट। और मैनेजर का ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी किस? लीडर तो ऑर्डर देगा, उसको इम्प्लीमेंट लीडर को ऑर्डर देता है, कर वो कर, तू मेरा नौकर है, चल, ऐसा। मैनेजर फ्लेक्सिबल होता है। मैनेजर क्या करता है? वो से मैनेज करता है बस, और लीडर डैमेज कर रहा है। ओके, वेरी गुड, गुड अटेम्प्ट। लीडर का काम ज्यादा सेंसिटिव है। रीजन बीइंग मैनेजर कैन डील विद थिंग्स बट लीडर डील्स विद पीपल। क्या चीज ज्यादा सेंसिटिव है? लोगों से डील करना या चीजों से डील करना? लोगों से। ज्यादा किसका? लोगों से। चीजें टूट जाती है, दे कैन बी रिप्लेस्ड। जब बंदा टूट जाता है कभी कभी इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, बड़ा मुश्किल होता है, राइट। सो इसलिए लीडर का जो काम है इट इज मोर सेंसिटिव। इसलिए जिन उनकी फीलिंग्स का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसमें बहुत अच्छी वैल्यू है, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लीडर, इज दैट ही शुड ट्रीट पीपल लाइक पर्सन। जैसे कॉर्पोरेट में दिस डिपार्टमेंट नोन एज एचआर, क्या होती है फुल फॉर्म इसकी? क्या? एचआर मींस हरे रामा। एचआर मींस ह्यूमन रिसोर्स। अगर हम ह्यूमंस को सिर्फ एक रिसोर्स मान के चलें, इज इट गुड? एक्चुअली ये डिपार्टमेंट है ना, ये नाम थोड़ा, इसका नाम थोड़ा ठीक होना चाहिए। अगर इफ वी ट्रीट ह्यूमंस ओनली एज अ रिसोर्स, इट इज सच एन इंसल्ट। अगर मेरे लिए व्यक्ति क्या है, मेरी चीज है बस, और क्या? कहते ये बंदा, हाँ मैंने कहा बस मेरे लिए टूल है। How will you feel that you are treated only like an object? And that's the difference between Lord Sri Ram and Ravan. Lord Ram treats even object as a person. Like Ayodhya. जब श्री राम जब जा रहे थे तो अयोध्या ने कहा, श्री राम आप कहाँ जा रहे हैं? आप जहां पर होंगे मैं वहां होंगी ना, so I will shift myself to that place जहां पर आप होंगे, अयोध्या ने बोला। और श्री राम ने अयोध्या को बोला, no अयोध्या, you be here, you serve अयोध्यावासी। तो लेकिन श्री राम जब आप ही नहीं है तो मैं अयोध्या यहाँ की क्या करूंगी? आप जंगल में जहां बसोगे ना, मैं अपने आप को वहां शिफ्ट कर लूंगी। तो श्री राम ने उनको मना किया, नहीं आप ही पे रहो। So Ayodhya is a place and Shri Ram is talking to a place as if she is a person. That's the leader. On the other hand, there is Ravan. He treats even person as an object. लाइक उनके मामा जी कौन थे? मारीच। कि जा मारीच, तू जा, तेरे को मरना ही है तो मर जा, मैं सीधा धारण करूंगा। Because for me, you are just an object. You are just an object. So when we objectify a person, that is the worst kind of management. The real kind of management is when you treat even things like a person. What to speak of person as a person? Respecting a person as a person is very important for a leader. And that is what Sri Ram does. Another quality in a leader which is required is humbleness. Humbleness. आप कितने लोगों ने कभी egoistic leader के साथ काम किया है? अच्छा, ज़्यादा बड़े काम नहीं भाई, आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। तो दिल्ली आके देखिए, आपको ऐसा स्वाद मिलेगा, ईगो का, ओए ओए ओए। जितना व्यक्ति ऊपर बढ़ता जाता है, उतनी सर में ईगो बढ़ती रहती है। Yes.
know what is real power? The real power is still that you are powerful and yet you are humble. That's real power. Otherwise power के साथ देखो बुद्धि तो खराब होती है. That's what they are saying. If you want to test somebody's character, give him power. क्योंकि जब व्यक्ति नीचे होता है ना, वो तो humble है जी, हम तो गिरे हैं जी, हमारा क्या था, हम तो तुच्छ हैं साहब, हम तो तुच्छ जीव हैं सर, हम तो तुच्छ हैं, तुच्छ, क्योंकि वो वाकई में तुच्छ हैं. ये तो जब when you get power and still you are humble, that's opulence actually. और ये बहुत रेयर होता है, क्योंकि पावर कहाँ चढ़ती है? सीधा यहाँ चढ़ती है. Yes, control, power, लोगों का सर झुकना मेरे आगे, उसका ये रोमांच होता है. Yes, आप जो घुसे सबके सर झुके, सर 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 सर. You feel like a mini god. So ego खाना मिलता है. Yes. लेकिन ईगो के साथ क्या है? ईगो डोमिनेट्स इंटेलिजेंस. ईगो डोमिनेट्स इंटेलिजेंस. बुद्धि भ्रष्ट तभी होनी शुरू होती है actually. तो इसलिए as we grow, instead of arrogance and ego dominate my intelligence, humbleness should rule my intelligence. Humbleness. और humble लोगों के साथ लोग काम करना चाहते हैं. arrogant लोगों के ना सामने लोग बहुत तारीफ करते हैं, सर कमाल है सर आप, कमाल है सर आप, जो निकल जाते कीड़े पड़े हैं सामने से तारीफ करते हैं उसी, इसके इतने नकली फॉलोअर्स होते हैं और इसको लगता है मेरे बहुत फॉलोअर्स हैं, ये सब सर झुकाते हैं, पर वो सर झुका नहीं रहे आपके सर, वो आपकी सिर्फ पोस्ट आगे सर झुका रहे हैं. जैसे आप इस पोस्ट से हटेंगे, गुड मॉर्निंग भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि सिर्फ पोस्ट को नमस्कार था. अगर दिस इज अ गुड एटीट्यूड, आई ट्रीट ओनली पर्सन विद अ पोस्ट, नॉट द पर्सन एज अ पर्सन. ये ठीक है? दिस अनदर काइंड ऑफ इम्पर्सनलिज्म व्हिच हैपेंस इन मैनेजमेंट, कि हम उस व्यक्ति की इज्जत करते हैं जिसके पास पावर है, और सिर्फ उस व्यक्ति की इज्जत नहीं करते हैं, सिर्फ उस पावरफुल पोस्ट की इज्जत करते हैं, not the person who is sitting there, which is also so bad. इससे अच्छा होता है when somebody goes to the top, he becomes very lonely. You know Bill Gates एक ऐसे गांव में जाते हैं जहां पर कोई नहीं जानता कि वो Bill Gates है. Do you know why? Because in Microsoft everyone treats Bill Gates as Bill Gates, and that's why he's on the top. He feels very lonely. जो बोलेगा हाय सर, कैसे हैं सर, बिल सर, कैसे सर, हमारे बिल पास करिए सर. ये स्वार्थ है. And that's why Bill Gates goes to one farmers community where nobody knows that he's Bill Gates. He's told, you know, I bought a farm here, मैं कभी भी बीच में आता हूँ just to take care of the farm which my father has given to me. ताकि कोई तो उसको एक व्यक्ति की तरह ट्रीट करे. Everyone wants to be treated like a person. So even Bill Gates, he goes to one farmers community. तो इसलिए बहुत जरूरी है that we have this quality of humbleness also. Arrogance is very stinking. Those who have arrogance, उनको बोलते हैं बॉस. और बॉस पता है बॉस को बॉस बोलते हैं क्योंकि बॉस बहुत बासा होता है, उसमें से ईगो की बात सारी होती है. यस बास, यस बास, बहुत बात आती है आपसे, ईगो की बात. So the quality in a leader which is required is humbleness, and this quality of humbleness we learn from Lord Shri Krishna. Lord Shri Krishna is declared in the Bhagavad Gita as the supreme Lord, the supreme controller, the supreme master, the supreme proprietor, the supreme enjoyer. That's Lord Shri Krishna. Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarva Karana Karanam. That's Krishna. अच्छा ये कृष्ण ने वाला रोल क्या लिया है? He has taken the role of a chauffeur. Chauffeur जानते हैं ना? गाड़ी चलाने वाला. ये रोल लिया. अर्जुन पीछे हैं, भगवान रथ हाँक रहे हैं. अच्छा रथ हाँकना वाला क्या होता है? रथ हाँकने में कौन सी बड़ी बात है? तो सब हाँक लेंगे. Actually योद्धा जब होता है, योद्धा जब उसको जब कम्युनिकेट करना होता है, he cannot communicate by speaking, he communicates by kicking. अगर यहाँ लात पड़ी, इसका मतलब रथ को राइट मोड़ना है. अगर यहाँ लात पड़ी, इसका मतलब रथ को यहाँ मोड़ना है. अगर बीच में लात पड़ी मतलब रोकना है, इससे मुझको सामने वाले को लड़ना है. So भगवान श्री कृष्ण ने 18 दिन सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक अर्जुन से लात खाई. That's what is chauffeur. हम से कितने लोग ऐसा कर सकते हैं? मैं ड्राइवर को बोले, ए ड्राइवर ऐसा कर, मैं गाड़ी ना चलाऊंगा, तू पीछे बैठ जा. जब गाड़ी लेफ्ट मोड़नी हो तो लेफ्ट गाल पर थप्पड़ मारना, गाड़ी राइट मोड़नी हो तो राइट गाल पर थप्पड़ मारना, और जब गाड़ी रोकनी हो तो मेरी बात खींचना. हम लोग कर लेंगे ऐसा 18 दिन. अफकोर्स ड्राइवर भी कहेगा सर बिल्कुल सर, क्यों नहीं सर,
बिल्कुल सर, आज तो पूरा बदला निकालूंगा। So here is Lord Shri Krishna, who is declared as the supreme absolute truth, the supreme personality of Godhead. This person has become a chauffeur, a driver, for 18 days, from sunrise till sunset. Wow, that's humbleness. That's humbleness. Humble quality, it's a rare quality. But yes, but humbleness is so very inspiring. इसमें समुद्र ने पूछा गंगा माई से कि गंगा भाई ऐसा क्यों कि तुम्हारे बहाव के अंदर बड़े बड़े कोई पेड़ भी आते हैं, बड़ी बड़ी टहनियां आती हैं, लेकिन वो हरी हरी घास भी उगी हुई है, वो क्यों नहीं लेके आती? तो गंगा माई ने कहा कि जब मेरा वेव्स आती हैं, मेरी वेव्स बड़ी स्ट्रांग होती हैं, तो पेड़ खड़े रहते हैं, उनको उखाड़ देती हूँ मैं और अपने साथ ले आती हूँ, लेकिन घास के तिनके क्या होते हैं, उन्हें झुक जाते हैं और मेरी वेव्स उनके ऊपर से निकल जाती हैं, जब मेरी वेव्स निकल जाती है फिर से खड़े हो जाते हैं। This is humbleness. त्रिनादपि सुनिचेना। तो लाइफ में कभी कभी क्राइसिस भी आते हैं, at that time you should be ready to become humble as well. Humbleness, विनम्रता. Now there is difference between inferiority complex and humbleness. कौन बताएगा what's the difference between inferiority complex and humbleness? कौन बताएगा? Anybody? हाँ जी बताइए, क्योंकि दोनों व्यक्ति बोलता है हम क्या हैं, तो तुच्छ हैं, ही बोलता है हम तो तुच्छ हैं, दोनों सेम बात है, भाषा बोल रहे हैं, लेकिन एक होता है inferiority complex, एक होता है humbleness. What's the difference between the two? कौन बताएगा? Inferiority complex is that you feel that you are lower than everyone and you think Okay, in inferiority complex you feel that you are lower than everyone, और humbleness में humbleness is like for the situation you bow down so that situation goes up well. okay, you bow down so the situation goes well. Okay, और कोई guess? Respect to others and oneself. ये आपके मास्क की वजह से मैं सुन नहीं पा रहा। Respect to others and oneself. Humbleness. Respect for Others and oneself. other self and non-self. Yeah. That is Humbleness. humbleness. और inferiority complex? Means they understand mean oneself. Okay, I understand. Yeah. एक में हम तुच्छ हैं और एक में हम सेवक हैं। अच्छा, एक में हम तुच्छ हैं, तुच्छ हैं, एक में हम सेवक हैं। एक में हम सेवक हैं. Okay, very good. Silent fighter but polite. Silent fighter and polite. And this person is humble. Humble. और inferiority complex is? Inferiority complex is a lack of confidence. Lack of confidence. Okay. Okay, good attempt. Yes, हाँ जी. Humble person does not think that he is superior. The inferiority complex person will think that he is less कुछ है, वो अपने आप को ऐसा समझेगा, पर जो humble है वो अपने आप को superior नहीं समझेगा, इसलिए surrender कर देगा अपने आप को. Okay, that's very good. That's also a very good definition. Inferiority complex पे आदमी ऊपर ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा. ये मतलब कुछ जो ऊपर पावर में आने के बाद में उसके अंदर निर्भरता रहेगी. Very good. Okay, बहुत अच्छा आपने पर्सपेक्टिव दिए. सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि humble व्यक्ति, even though he thinks that I'm not so great, but he has the quality that I want to improve. On the other hand, inferiority complex वाला व्यक्ति, he has got no desire to improve. कहता है हमारा कुछ नहीं होना जी, हम तो इतने बेकार हैं, इतने घटिया आदमी हैं, हमारा तो कुछ हो ही नहीं सकता. ये इसको बोलते हैं inferiority complex. On the other hand, humble व्यक्ति मानता है, yes, I'm not so great, but I'm always there to improve. चाणक्य पंडित जी says, तीन चीजों में हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए. अपनी वाइफ को लेके संतुष्ट रहना चाहिए, ठीक है, जैसे भाग्य में संतुष्ट रहना चाहिए. ये यहाँ मत आकर नहीं करनी चाहिए, काश अच्छा मॉडल मिल गया होता, मेरे थोड़ा इंतजार करता. अपने स्पाउस को लेके व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए. धन को लेकर के संतुष्ट रहना चाहिए. हमने पूरा प्रयास किया, ईमानदारी से हमने काम किया, उसके बाद जितना धन आया संतुष्ट रहना चाहिए. खाने पीने को लेकर संतुष्ट रहना चाहिए. ये नहीं आज ये क्यों बना दिया, ये क्या है, ये नमक कम है, ये क्या तुम दिवाली नहीं दो, पापा 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 नहीं करना चाहिए. जो आ जाए धन्यवाद, यही है. तो इन तीन चीजों में संतुष्ट रहना चाहिए. क्या कौन सी है? वाइफ को लेकर के, खाने को लेकर के, धन को लेकर के हमें संतुष्ट रहना चाहिए. अच्छा, किन तीन चीजों में हमें कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए? सबसे पहला है नॉलेज. नॉलेज को लेकर के कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए. Would that I could get know more, काश मैं और जान पाता, काश मैं और जान पाता. So we should never be satisfied in learning. पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते आते हैं, एक बीमारी आती है, वो उसको बोलते हैं complacency. इस complacency की वजह से we stop learning. कहता है सब जानते हैं भाई, हम सब जानते हैं, हमने ये धोखेबाज से देखी हैं, हमें सब पता है. So this complacency is not good for a leader. We should always be anxious to learn. ठीक है जी.
अच्छा, दूसरी क्या चीज है? दूसरा है नाम जप। कभी नाम जप करने में संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि बस आज हो गया, आज का कोटा हो गया, अब शक्ल नहीं दिखाऊंगा हरि नाम प्रभु को। नहीं, ऐसा नहीं। नाम जप करके हमसे ये होना चाहिए, काश ये और कर पाता, काश ये और कर पाता, काश ये और कर पाता। तीसरा है दान। दान को लेकर कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, कहते कर तो दिया हमने, और क्या, हमारा कोटा पूरा हो गया, काश ये और दान कर पाता, काश ये और दान कर पाता। हमेशा ये भाव रखना चाहिए। So one should never be satisfied in charity, in chanting the names and acquiring knowledge. In these three one should never be satisfied. और ये क्वालिटी है of a leader. Leader is never satisfied for self growth. Self growth पे हमें हमेशा काम करना चाहिए। Self growth पे हम काम नहीं करते, then we become victim of the surroundings. We should work on self growth. We should not go through life. We should rather grow through life. We should not go through life. We should grow through life. हमें self growth पे काम करना चाहिए। Charity begins at home, right or wrong? Wrong. Charity begins at self. Charity begins at self. तो लीडर के लिए बहुत जरूरी है that first he should change himself. एक व्यक्ति तो सोचा मैं दुनिया बदल दूंगा, दुनिया को माना कहना नहीं मानता उसका, अरे कोई सुनता नहीं यार, बदतमीज लोग। चलो मैं शहर बदल दूंगा, शहरों को मेरा कहना नहीं मानता, बदतमीज लोग। मैं अपनी सोसाइटी बदल दूंगा, यहाँ भी कोई भाई मेरा कहना नहीं मान रहा, बदतमीज लोग। कोई बात नहीं, मैं अपना परिवार बदल दूंगा, परिवार को कहना नहीं मान रहा, तो फिर व्यक्ति का चलो ठीक है, मैं अपने आप को बदलता हूँ। So when he changed himself, उसको देखते देखते उसका परिवार बदला, जब परिवार बदला तो सोसाइटी बदली, सोसाइटी बदला तो शहर बदला, शहर बदला तो देश बदला, देश बदला तो दुनिया बदली। So charity begins at self. So leaders should invest on oneself again and again and again, more and more and more. It's like we Hare Krishna devotees, we invest on our own selves. Morning में we do not go for any program. We don't take any program. In the morning we chant the holy name, we read shastras, we offer prayers to God. We invest on our own selves. जितना हम खुद पे invest करते हैं, in a way we are preparing ourselves to serve others. And it's a very beautiful quote. When we do not have spiritual substance, then we are slaves of our surroundings. When we do not have spiritual substance, then we are slaves of our surroundings. इसको कौन explain करेगा? Anyone? When we do not have spiritual substance, then we are slaves of our surroundings. कौन इसको explain करेगा? बताइए. Anyone? हाँ जी बताइए. Yes. जैसे कि अगर इंद्रियां कंट्रोल में रहेंगी तो खुद अपने डिसीजन ले पाएंगे, सब कर पाएंगे, लेकिन अगर इंद्रियां कंट्रोल में नहीं रहेंगी तो सराउंडिंग से फर्क पड़ेगा कि क्या करना है। Yes. We are provoked by provoking situations. Leaders are often provoked. तो provoking situation में हमें respond करना है, react नहीं करना है। लेकिन इसके लिए substance कहाँ से आता है? Spirituality से। अगर क्रिकेट में अक्सर ना अपील होती है, जैसे बॉलर ने मानो बॉलिंग की उसने और एलबीडब्ल्यू के लिए उसने अपील कर दिया, अपील कर दी उसने, और अंपायर बोले यार क्या अपील किया बंदे ने यार, भाई आउट देना तो बनता है, भाई आउट है यार, भाई क्या अपील, मतलब वाह क्या होता है, सुभान अल्लाह, कमाल होता है, क्या अपील, ऐसा होता है, ऐसा होता है, भले ही बॉलर कितना अच्छा अपील करता है, तुम्हारा अपील सर, आउट है सर, लेकिन अंपायर not out. So, not out. Same on life में ऐसा होता है. When there are provoking situations, तो मन बोलता है, अपील करता है, चिल्ला ले, दिखा ले, समझता है अपने आप को, मन बोलता है ऐसा. तो हमने कहा यार इतनी बढ़िया अपील हुई है, चिल्ला ही देते हैं, कोई खराब बड़ा सुनाई देते हैं. लेकिन अगर आप में spiritual substance है, नहीं चिल्लाना. सर एक आध गाली तो बनती है, मन बोलेगा ऐसा, नहीं बनती. हरे कृष्णा. पर ये हम कब कर पाएंगे? When there is spiritual substance in the heart. Otherwise it is very theoretical. जब गुस्सा आ रहा हो, गुस्सा मत करिए. ऐसा जब आता है तो सर ये नहीं हो तो होता तो बस फिर भड़ास निकल ही जाती है. तो स्पिरिचुअल सब्सटेंस की वजह से हम ये ठहराव लेकर के आ पाते हैं अपने अंदर, that we respond to situations, not react
to situations. You should respond. जैसे भगवद गीता के अंदर तीनों आते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण. रिस्पॉन्ड जब करते हैं दैट इज इन सतोगुण. रिएक्ट किसमें होता है? रजोगुण एंड तमोगुण. रजोगुण में यू आर डिस्टर्ब, तमोगुण में यू टेक रिवेंज. सर अब देखना, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन विद कंपाउंड इंटरेस्ट. ये कब आता है? ये तब आता है when we are in रजोगुण एंड तमोगुण. लेकिन सतोगुण के अंदर we respond to the situations. लाइफ में प्रोवोकिंग सिचुएशन सबके आती हैं. इवन साधु संतों की भी आती हैं. परीक्षा हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है. एक समय मुझे याद था, मैं एक जगह प्रवचन देने के लिए गया था. somehow वो लेडी को ना मैं बिल्कुल पसंद नहीं था. देव पंडित कौन आए तो खड़ी हो गई, कहते आपके जैसे साधु लोग, पाखंडी लोग, कपटी लोग देश को खोखला कर रहे हैं. काम के न काज के, दुश्मन दो मन अनाज के. अब ऐसे बैठे तो 2000 लोग बैठे. माता जी तो आप मानते हो कि मैं वाकई में बहुत खोटा आदमी. ऑफ कोर्स ये गंजे लोग सभी होते. एक माता जी देखिए, आप उम्र वाइज देखा जाए तो मैं आपकी बेटी की उम्र का हूँ, लाइक योर सन, और आपका बेटा जो है बहुत करप्ट है, पाखंडी है, कपटी है, तो क्या आप मेरे लिए प्रार्थना करोगे? So she was quiet. मैंने कहा मैम, excuse me, हरे कृष्णा, क्या आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे? करूंगी. So this can happen with anyone and everyone. चाहे कोई कॉर्पोरेट में काम करे, चाहे घर में काम करे, या कोई साधु वगैरह भी हो. Sometimes we are provoked. मैं एक समय गया था स्पीकिंग ट्री, you know स्पीकिंग ट्री, HT का स्पीकिंग ट्री. So I went there, तो वहां पर मैं उनके साथ, तो लंच का टाइम हुआ. लंच का टाइम तो जैसे मैंने कहा लंच का टाइम आएगा, ठीक है, मैं थोड़ा प्रसाद लेके आया था मंदिर से, तो मैं भी कैफेटेरिया में बैठ के मैं प्रसाद पा रहा था. तो लोग थोड़े बड़े अजीब हो रही थे, वो थोड़े घबराए हुए थे. सर आप लोग क्या हो गया, आर यू ओके? सर आप कैफेटेरिया में हमारे साथ बैठ के लंच करने. मैंने कहा हाँ भाई, भूख मुझे भी लगती है. साधुओं का मतलब खाना पीना थोड़ा छोड़ देंगे. नहीं सर, वो बात नहीं है सर. ऐसे इससे पहले भी ना हमने एक महात्मा जी को बुलाया था यहाँ पर. उनका सेशन था ऑन एंगर मैनेजमेंट. वो बोल रहे थे एंगर मैनेजमेंट, बीच में जो होस्ट थी वो आ गई. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मिलते हैं ब्रेक के बाद, स्वामी जी से हम और बातें सुनेंगे. तो अभी हम लेते हैं एक ब्रेक. उसने ऐसा बोले बीच में आके. स्वामी जी ने कहा तू बीच में कैसे आ गई? तू होती कौन है? मेरे दर्शकों के साथ अपना कनेक्शन है, तू होती कौन है? उसके ऊपर ऐसी डांट लगाई उसको. टॉपिक क्या था? एंगर मैनेजमेंट. हम वो तो इसलिए बड़े घबराए होते. कहते हैं भाई कभी कभी साधु लोग में भी ना उनका भी, तो मैंने कहा सर आपका भी कुछ ऐसे होगा? नहीं, मैं आई एम नॉर्मल. द पॉइंट इज दैट ऐसी प्रोवोकिंग सिचुएशन एक लीडर की लाइफ में आ सकती है. अ लीडर कैन बी प्रोवोक्ड, बट एट दैट टाइम ये सात्विकता ये उसकी हेल्प करती है. सो दिस हम्बलनेस इज सो वेरी इंपॉर्टेंट. हम्बलनेस. एक और चीज है which is very important for a leader is flexibility in profile. The Lord Krishna is a chariot driver. ये देखा हुआ अर्जुन कंफ्यूज हो रहे हैं. He took the role of a teacher for 45 minutes. भगवान की गीता सुनाई. 45 minutes के लिए he became a teacher. Again he is back in his role. This is another quality of leader. यानी जहां पर कहते हैं do the needful. जहां पर do the needful की आवश्यकता है, he is there and that's the leader. लीडर की भाषा कभी नहीं होती, सर ये काम मेरा नहीं है, मुझे इसके लिए पैसा मिलता है क्या? हैं? इसके लिए पैसा मिलता है क्या मेरे को उसके लिए पैसा मिलता है? हाँ नहीं तो. ये भाषा लीडर की नहीं हो सकती. अगर वैसा बोल रहा है, सर यू कैन वर्क, यू कैन बी अ बॉस एट द मैक्स, बट यू कैन नॉट बी अ लीडर. लीडर की ये भाषा हो नहीं सकती. लीडर हैज टू बी accommodating, flexible. और देखिए हर चीज के अंदर, हर वो चीज जिसमें जान है वो फ्लेक्सिबल है. हर वो चीज जिसमें जान है. जैसे जड़ें होती है ना, जड़ें जब फैल रही होती है, नीचे पत्थर आता है तो ऐसे फैलती है वो. ये पत्थर से नहीं, हट जा रास्ते से. हाँ फैलना है तो क्यों नहीं हट रहा? हट जा. पत्थर का देख भाई, मैं तो नहीं करूँ, मैं तो नहीं वाला. तो जड़ें फिर ऐसे फैलना शुरू कर देती. नदियों सामने पहाड़ आते हैं तो पहाड़ खड़े हैं तो नदी बोले हट जाए, मुझे बहना है, यहाँ से सीधे निकलना है मेरे को. पाएगा देख बहन, मैं तो यहीं खड़ा हूँ, मैं तो नहीं हटने वाला.
तो नदी कहती ठीक है भाई साहब. So because नदी में flexibility है तो इसलिए नदी समुद्र से मिल पाती है. So one more quality of a leader is that a leader should be flexible. In his psychophysical nature, he should be flexible. वो एक particular profile से attach नहीं कर सकता. हो सकता है उसका main profile हो, लेकिन इसके अलावा और भी profiles हैं where he has to be active, where he has to be proactive. जो वो ऐसा कर पाता है, then that leader is actually a leader. साथ ही leader is always anxious to serve. ये leader की quality होती है. Leader means he is servant of everyone. That's why the latest leadership model जो आजकल चल रहा है corporate में, that is servant leadership. I am your servant. Servant. Sevak. That's really a leader. You see, one more quality which is required in a leader is that a leader makes himself dispensable. क्या होता है dispensable? कौन बताएगा? What is this dispensability? कौन बताएगा? What is this dispensability? उनके बिना चल सकता उनके बिना भी चल सकता है. यानी लीडर को ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे तैयार करना चाहिए कि मेरे बिना भी सब कुछ चल सकता है. लेकिन यूजुअली अक्सर कई भी लीडर नहीं करते. कहते हैं अच्छा मेरे बिना चलेगा तो निकाल देंगे मेरे को. ऐसा आपको चल सकता है. बाय 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 बाय. तो लीडर कभी-कभी क्या करता है, अपने आप को डिस्पेंसेबल नहीं बनाता. अरे भाई हम इंडिस्पेंसेबल बनाएंगे तो हमारी दुकानदारी चलती रहेगी. हां, but leader should make himself dispensable, and then he is seen by his followers that sir is actually indispensable. Get it what? When the leader makes himself dispensable, he is seen by everyone else as indispensable. On the other hand, when the leader seeks to remain indispensable, लोग सोच रहे होते हैं भाई make him dispensable. That's the way psychology is there. So say a leader is like that. He empowers people. Insecure leader कभी empower नहीं करता. But a secure leader, he empowers. Like जैसे Lord Krishna when he is there, सारे पांडव लोग पहुंचे बर्बरी के पास. बर्बरी was watching entire match. सारी war 18 दिन. तो सारे पहुंचे हुए किसको मैन ऑफ द मैच मिला, किसको मैन ऑफ द सीरीज मिला, पूछेंगे तो बर्बरी जी Who gets the man of the match? आपने तो सारा मैच देखा ही है. बर्बरी नहीं कर रहा है. मैं तो ये देख रहा था कि कोई तलवार घुमा रहा है, कोई भाले फेंक रहा है, कोई धनुष बाण चला रहा है, but actually सुदर्शन चक्र है जो सबको मार रहा है. So actually entire Mahabharata was under control of Lord Shri Krishna. But he is there as only as a humble chariot driver. That's the leader. Leader करता सब कुछ है, लेकिन क्रेडिट औरों को देता है. जिससे हम क्रेडिट हम लेना चाहते हैं ना, क्रेडिट हमारे हमको मिले, हमने किया है परफॉर्मर ऑफ द मंथ किसको मिलेगा, उसको भी मिल गया, हमें मिलना चाहिए, हमने किया है. क्रेडिट. A leader is not after taking credits. A leader is always after empowering people. और वो श्रेय मिले. फेलियर्स का श्रेय वो खुद लेता है कि जो भी फेलियर हुआ उसका श्रेय मेरे को जाता है, लेकिन सक्सेस का श्रेय वो टीम के साथ बांटता है. Even after Mahabharata war, Lord Krishna didn't go to Pandavas. तो भाई मेरे लिए क्या है भाई? मैंने 18 दिन रथ चलाया. हमारे लिए क्या है? हमारे लिए कुछ है? नहीं है. मैं द्वार कैसे चली जाऊं? क्या बोली मेरी भाई रुक्मणी? खाली हाथ आ गए? तुम किसी काम के नहीं हो? क्या बोलूंगा सत्यभामा को? ऐसा हुआ? No. Even after doing this seva of the Pandavas for 18 days, Lord Krishna did not ask for anything. So there is one more quality in a leader, is that a leader is very selfless. निस्वार्थ होता है leader. निस्वार्थ. अच्छा निस्वार्थ वाला कौन होता है? The one who is satisfied. The one who is settled. The one who is satisfied. He can contribute. So who can contribute? The one who is satisfied. जो satisfied नहीं है ना, वो सोच रहा है मेरा फायदा कहाँ होगा, कैसे होगा, क्या करूं, ऐसा करूं, क्या खेल खेलूं, क्या पॉलिटिक्स खेलूं. He is into that. So there is one more quality in a leader. The leader is very selfless. He selflessly contributes. That's the leader. It's a leader is more by influence. Leader is more by influence, not by position. अब वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास पावर पोस्ट पोजीशन नहीं है, लेकिन सब उनको बहुत मानते हैं. ऐसे लोग होते हैं. ऐसे लोग होते हैं. Like Lord Shri Krishna is not having any position. He is not commander in chief, but he is actually guiding everything. He is ruling everything. Like that.
तो इसलिए हमें किस प्रकार का लीडर बनना चाहिए, right? So Bhagavad Gita inspires us that whenever you have confusion, you should have a mentor. So a leader should also have a mentor. हमारे ऊपर कोई ना कोई होना चाहिए, बहुत जरूरी है. We must have a teacher in our life, so that we can pursue some values, some inspiration from the person. In this way, there can be ideal leadership. Okay, I'll stop here now. If anybody has any question, we'll take your questions. Anji, पूछिए. Yes, what's your question? How do we identify the mentor? What should be the qualities of the mentor? Okay, what are the qualities required in a mentor? Firstly, mentor should also have a mentor. Otherwise, he will make you mentor. Mentor should also have a mentor. यानी mentor के ऊपर कोई होना चाहिए जिसका काम खींचने वाला हो. That means he has been very loyal servant of his own mentor. That's one quality. Second quality is that, of course, he should be subject matter expert. Mentor. ठीक है जी. So he should have knowledge. He should have skills. He should have values. पर इसमें values में, skills में, knowledge में, इसमें gold medal जाता है values, silver medal to knowledge, and bronze medal to skills. So mentor के अंदर values होनी चाहिए. अब देखिए अगर mentor के अंदर values नहीं होती ना, वो mentee को अक्सर exploit कर बैठता है. Physically exploit कर देगा, financially exploit कर देगा, या emotionally exploit तो कर ही देगा. This happens. तो इसलिए उसके अंदर ये emotional maturity होनी चाहिए. And he is also detached. Detached in the sense he is there to contribute, not expecting anything from the mentee. तो ये mentor के अंदर होना चाहिए. साथ ही mentor should be there to facilitate even other mentors to help the person. एक बहुत common बीमारी जो mentor में मिलती है वो है possessiveness. ये मेरा property है. ये मेरे पास आती है, मेरे से doubt पूछती है, इसलिए ये मेरी property है. That's one more disease of a mentor. So sense of possessiveness. इससे बचना चाहिए mentor को. Yeah, of course he should have very good character also. So this person can be mentor. Okay, हाँ जी पीछे. Yes. Hi, Vishal Babu. Yeah, you said that HR is not the right way to, Address, yes. to understand the people in the company. So, can you suggest some other good name for the HR department? We can say human asset. Yeah, you want to Yeah. Because we asset also, हो गया जाता है, तो God, something, HR, asset is also. हाँ, so it can be HA. H? HA. Human asset. This is my HA department. Human capital. Or it can be HT. Human treasure department. Human capital. Yeah. Human capital. Human capital भी होते हैं capital. Yeah. So they are just saying this. तो तुम्हें लोग यही है. तो पता लगे घूमो ना. That's not good. अरे विशाल भाई, प्रभु जी ये पूछना था मुझे कि मतलब आजकल जो सोशल मीडिया पे 12 से लेके 52 मतलब 52 साल के सभी लोग, सभी एज के लोग हैं, तो आजकल जो सोशल मीडिया पे इतनी सारी नेगेटिविटी चीज़ें हैं अपने सनातन कल्चर को लेकर, क्या इसको हमको सच में सीरियसली लेना चाहिए, या फिर जैसे हमारे वेद और भगवत गीता कहते हैं कि भगवान जो है अच्युत है और हमारे जो वेद अच्युत है, ये कभी किसी के गंदा करने से या दूषित करने से दूषित होगा नहीं. Yes. तो क्या हमको इन सब चीज़ों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, नेगेटिव मतलब ये जो फैलाया नेगेटिविटी को सीरियस लेना चाहिए ताकि उस नेगेटिविटी को हम काउंटर कर सकें. नेगेटिविटी को इस तरह सीरियस नहीं, ओह माय गॉड, ओह सो मच नेगेटिविटी, सो मच नेगेटिविटी, सो मच नेगेटिविटी. ये करने से क्या होगा? नेगेटिविटी को काउंटर करने के लिए वी शुड डू समथिंग. ठीक है? दैट इज वी शुड टेक इट सीरियसली. हाँ जी प्लीज सर. आपने अभी जैसे बताया कि एक लीडर के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए. हाँ जी. होना चाहिए वो तो ठीक है, लेकिन एक लीडर वो क्वालिटी डेवलप कैसे करे, उसका क्या ये सोर्स क्या है, कैसे करे? वेरी इंपॉर्टेंट कि भला लीडर ये क्वालिटीज डेवलप कैसे करे. लीडर में ये होना चाहिए A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. कैसे होना चाहिए? सबसे पहली बात जो है that he should have thirst for knowledge. लीडर का सबसे बड़ा दुश्मन है apart from ego is complacency. हालांकि complacency भी ego से ही आती है. हमें सब पता है जी. I know everything. This thing is complacency is coming from ego. So when there is yearning, when there is thirst for knowledge, and there is thirst for growth, and there is thirst for values, that's what is required in a leader. Especially जितना हम आगे बढ़ते रहेंगे, उतना we should become more thirsty. That's what is required. Then a leader can learn. Then a leader can grow. There are ample of opportunities for growth. But इनका फायदा कब ले पाते हैं? Then we have thirst for improvement.
not be managerially in hierarchy, but I want to grow as a person. ये thirst जब उसके अंदर आती है, when it becomes like a blotting paper, then he can absorb. ये quality leader के अंदर required है. Example also, there are many online resources. Somebody can learn some skills, some knowledge. Management के ऊपर अच्छी किताबें हैं, values के ऊपर अच्छी किताबें हैं. Lot of things are there. पर हम ये क्यों नहीं लेते? Because this person has become like a plastic. No absorption. So he should always be there to absorb like a blotting paper. More and more and more. ये attitude जो है ना ये बहुत जरूरी है leader के लिए. I want to grow. As a person I want to grow. Automatically I would grow as a leader in terms of my effectiveness in my leadership. But with personal growth है, that is so much required. Yeah. हाँ जी, please. How to handle somebody's ego in a positive way? How to handle somebody's ego? Yeah, in a positive way. सबसे पहले तो आप देखो पॉजिटिव में बाद में डील करेंगे. पहले देखो उस ईगो से आप प्रभावित ना हो जाओ. अगर हम अफेक्ट हो गए, आप उसको क्या प्रभावित करेंगे? से हम खुद ही प्रभावित हो गए, राइट? सबसे पहले तो सेव योरसेल्फ. दूसरे वाले की ईगो से खुद को बचाइए. अगर कोई व्यक्ति कुछ ऐसा बोल रहा है आउट ऑफ ईगो, अपनी ईगो में आकर बोल रहा है, अपनी प्राइड में, अहंकार में बोल रहा है, see that this person is currently controlled by his ego. इससे दिल पे मत ले यार, दिल पे मत ले, मर जाएगा. ठीक है? That's the first thing. Second thing is that उसके देखो ये ईगो वाला कहाँ से आ रही है? उससे एक पर्टिकुलर नीड है. ईगो क्या मांगती है? इज्जत, रिस्पेक्ट. उसको दे दो. That's it. और उससे जो काम कराना है क्या काम करो. सर you are such a genuine soul. मतलब आपके ऐसे हीरे तो विरले होते हैं. तो ईगो आपने खाने लगा. ईगो बोले अच्छा लगा, बताइए आपका क्या करना है. आप बस थोड़ा सा कर दो. That's the positive we can do. Yeah. हाँ जी. नौकर और सेवक में क्या फर्क होता है? हाँ जी. नौकर और सेवक में क्या फर्क होता है? नौकर और सेवक में क्या फर्क होता है? नौकर करता है नौकरी के लिए, या नौकर करता है इसके लिए महीने के आखिर में मेरे को ये मिलेगा. सेवक की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती. इसलिए प्रभु के सेवक होते हैं, प्रभु के नौकर नहीं होते. प्रभु अब कितना पैसा दोगे? मैंने इतना नाम जप किया आपका, थोड़ा रोकड़ा दो ना. सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे कंठा, ओम जय जय जगदीश हरे. प्रभु ये साइकिल ब्रांड मोगरा फ्लेवर अगरबत्ती से घुमा रहा हूँ, सुख संपत्ति घर आए, कष्ट मिटे कंठा. तो ये सेवक नहीं है, क्योंकि इसकी एक्सपेक्टेशन है, राइट? तो नौकर होता है, उसकी एक्सपेक्टेशन होती है. कहते हैं नौकर कहते हैं उसको एक्सपेक्ट साहब अब हमको कुछ चाहिए, हमने आपकी सेवा की. तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन सेवक एंड नौकर. हरे कृष्णा. हाँ जी, हरे कृष्णा. आपने बताया मतलब जो लीडर होते हैं, जो कंपनीज में, अगर उन्हें कोई मिशन अचीव करवाना है अपने एम्प्लॉयज से, अपने सबऑर्डिनेट से, लेकिन हमें उनको, हम नॉर्मली कभी भी कोई लीडर क्या बोलता है, तुम्हें प्रमोशन मिल जाएगा, इंसेंटिव मिल जाएगा या अप्रेजल मिल जाएगा. ये मटेरियलिस्टिक लोभ लालच देना सही है या नहीं, या फिर आप स्पिरिचुअल सब्सटेंस एक लीडर कैसे लाए अपनी टीम से मिशन अचीव कराने? तो ये होता क्या है कि ना जो किसी की आवश्यकता है, फॉर एग्जांपल से प्रमोशन, उसकी आवश्यकता है, ये आवश्यकता पूरी करके फिर इसको और बढ़ाया जा सकता है. लाइक लॉर्ड कृष्णा सेज भगवद गीता, पहले ही इज गिविंग मोटिवेटेड इंस्पिरेशन. अर्जुन अगर तुम जीत जाओगे तुमको इंद्रप्रस्थ मिल जाएगा, मर भी जाओगे तुमको स्वर्ग मिलेगा, लड़ो. सो ये क्या मोटिवेटेड इंस्पिरेशन है. बट एज he goes into chapter 2 verse number 39, he says अब हार और जीत का मत सोचो, सिर्फ लड़ो. Now he is taking him beyond motivated inspiration. Now it is becoming unmotivated inspiration. And ultimately he says सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. He is taking him now absolutely selfless motivation with no motivation of ulterior motives, nothing doing. पर start कैसे हुआ? With ulterior motive. अरे अर्जुन अगर तू जीत गया तो किंगडम तेरी, मर भी गया तो स्वर्ग मिलेगा, लड़. So he started with motivated motivation. Then it becomes unmotivated motivation. तो इस तरह से हमें भी करना चाहिए मैनेजमेंट. First we may start with motivated motivation, gradually taking to unmotivated motivation. सर मेरा एक क्वेरी है. हाँ जी. अभी एक लेटेस्ट टॉपिक है हिंदुत्व. हाँ जी. हिंदुत्व पे अभी काफी बातें होती रहती हैं. मेरा 3 सेंटेंस है जिसपे मैं आपका 2-4 वर्ड चाहूँगा. एक जो धर्म है, दूसरा अध्यात्म और तीसरा हिंदुत्व. क्या तीनों एक ही चीज है? धर्म, अध्यात्म और हिंदुत्व.
हम हिंदुत्व की बात करते हैं, we are talking about certain rituals, certain culture, certain formalities which we do, right? उसकी पीछे जो feelings हैं वो है अध्यात्म। feelings होती हैं उनको execute, like for example लड़का जो है उसमें लड़की के लिए feelings हैं वो है अध्यात्म। उसने फूल दिया I love you darling, ये है धर्म। लेकिन लाल गुलाब ही दिया, ये है हिंदुत्व। कोई पीला गुलाब भी दे सकता है, right? So ये तीनों अंतर है। Feelings is spirituality, उसको एक्सप्रेस करना is religion, एक पर्टिकुलर तरीके से एक्सप्रेस करना एक वो पर्टिकुलर religion, it can be Hindu, it can be Muslim, it can be Christian, like that। तो ये है तीनों। ठीक है, लेकिन आप देखिए भगवद गीता क्या है, it's the most secular book, और हमारा ISKCON is primarily promoting this भगवद गीता, ताकि कोई व्यक्ति चाहे किसी धर्म का हो, किसी भी अध्यात्म का हो, या किसी भी चाहे हिंदुत्व का हो या मुस्लिम, कोई भी हो, anyone, we are giving this knowledge to everyone। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार ही बोला गीता के अंदर, हे अर्जुन, जो कि तुम एक हिंदू हो, इससे तुमको गीता सुना रहा हूं। Not even a single verse। श्री भगवान उवाच अर्जुन त्वं हिंदू अस्ति अतः अहं त्वं भगवद गीता। Not even a single verse। Not even a single verse। So it's the most secular book, and that's what we are trying to do through this ISKCON Vapi project। तो बहुत ही सुंदर मंदिर बनने वाला है। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं कि आपके ही वापी में भगवान बहुत सुंदर घर के साथ आ रहे हैं। आपने सुना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? पर आप देखिए नंबर 1 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली क्या है? मंदिर बनाना। आपको बोलते हैं ऐसे कैसे? स्कूल बनाना समझ में आता है, हॉस्पिटल बनाना समझ में आता है, ये कैसे? एक्चुअली मंदिर जो है एक स्कूल भी है, क्योंकि हम वहां पर स्पिरिचुअल एजुकेशन देते हैं। पापी पेट के सवाल से भी ऊपर कुछ होता है साहब। यहाँ एक और भी ऑर्गन है, उसको क्या बोलते हैं? हार्ट। हार्ट की एजुकेशन हमारे स्कूल कॉलेज में नहीं दी जाती। So when we come to temple, especially ISKCON temple, we get spiritual education. So it's a school. ये अनाथ आश्रम भी है, because जगत के अंदर we all are अनाथ, we are without our Lord, we are अनाथ. But in temple we get Jagannath. Because of Jagannath we become Sanath. And that's why it is अनाथ आश्रम also. बल्कि अनाथ आश्रम में व्यक्ति अनाथ ही रहता बेचारा, लेकिन ये मंदिर जो है इसका हम सनाथ बन जाते हैं। तो ये अनाथ आश्रम भी है, राइट? ये हॉस्पिटल भी है, क्योंकि शरीर का इलाज करने वाले बहुत हॉस्पिटल हैं, लेकिन मन का इलाज करने वाला कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो मन का इलाज करने वाला हॉस्पिटल क्या है? हमारे ISKCON टेम्पल, राधा गोविंद टेम्पल, ISKCON वापी। So it is going to be a temple for the mind। तो सबसे बड़ी दिक्कतें शरीर में नहीं है, दिक्कतें तो मन में है। तो मन का भला हॉस्पिटल कौन सा है? टेम्पल। तो ये इसलिए अस्पताल भी है। वेरी गुड। साथ ही काउंसलिंग सेंटर भी है हमारे ISKCON के अंदर। नाउ millions and millions of people have taken benefit of counseling। So एक काउंसलिंग सेंटर भी है। अच्छा और क्या है? ये वीजा ऑफिस भी है। Here we get a visa for spiritual life, for spiritual world। We get visa, passport, बिल्कुल ऑथेंटिक। कई लोग जा भी चुके हैं, कई लोग जा भी नहीं, रास्ते में फॉर्मेलिटी नहीं पूरी हो रही है। So वीजा ऑफिस भी है। एक साथ ही अनाथ आश्रम भी है, हॉस्पिटल भी है, स्कूल भी है, और काउंसलिंग सेंटर भी है, वीजा ऑफिस भी है। So many institutions together are working when there is a temple। So temple is not just a religious place। यहाँ पर आप क्यों बना के जाते हैं, फटा 10 करोड़ डालते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या ये मेरा। मंदिर is much more than that। जैसे राधा गोविंद जी का बहुत ही सुंदर मंदिर बनने जा रहा है। So इसलिए CSR means corporate spiritual responsibility। It's an upgradation of the definition। So we should go by this। So we must contribute for a beautiful, wonderful temple, because temple means T for tranquility, E for education, M for motivation, P for prasadam। Prasadam, right? We get so much prasadam। Like ISKCON distributed 7.5 crore plates of prasadam during COVID-19 only, phase 1, phase 2। So P for prasadam, P for protection, of course, right? And then L for love, and E for enlightenment। We get TEMPLE। T stands for tranquility, E for education, M for motivation, P for prasadam, L for love, divine love, yes, and E for enlightenment। That's the temple। तो इसलिए हम सबको इस मंदिर को बनाने के लिए सहयोग देना चाहिए यथाशक्ति। कुछ हनुमान जी भी होंगे आप में, तो हनुमान जी वाली सेवा करेंगे, सीधे बड़े बड़े बोल्डर ला कर रखे पुल बनाते वक्त।
और कुछ गिनहरी वाले भी होंगे, किसी जेब खर्ची है 100 रुपए, उसमें से किसने 10 रुपए दिए, 20 रुपए दिए, परफेक्टली फाइन। तो इसे यथाशक्ति हम सबको इस सुंदर प्रोजेक्ट में लगना चाहिए। और CSR के तौर पे ऑफ कोर्स there can be so much contribution because we can actually serve society in the best possible way by making a temple, especially ISKCON temple. यहाँ पर कोई लाला जी नहीं बैठे with his postpaid connection. It's a spiritual education center. ISKCON temples are spiritual education centers. आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, ISKCON के द्वारा 60 करोड़ भगवद गीताएं बांटी जा चुकी हैं। इवन चाइना जो कि एक नास्तिक देश है, वहां पर 20,000 हरे कृष्णा डिवोटीज हैं आज। 20,000। एक ऐसा देश जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है चाइना इज एन एथियस्टिक कंट्री, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। एक नास्तिक देश के अंदर 20,000 हरे कृष्णा डिवोटी हैं, जो पहले कुत्ते और चमगादड़ और सांप बिच्छू कुछ भी खाते थे, आज शुद्ध शाकाहारी भोजन बिना प्याज लहसुन का राधा कृष्ण को भोग लगा करके तुलसी पत्र के साथ वो प्रसाद खाते हैं। These 20,000 Hare Krishna devotees just in China. There are more than 3.5 lakh Hare Krishna devotees in Russia. रशिया के अंदर ऋषियों का देश हो गया वो रशिया, तो सुना होना चाहिए ऋषिया, पहले था वो रशिया। Now we should rename the country as Russia. So all over the world people are accepting to this Hare Krishna, chanting of Hare Krishna, teachings of Bhagavad Gita. All across the globe it is happening. Now it has come to Vapi as well. तो वापी में आप सबके पास एक सेवा का मौका है, so please kindly contribute as much as possible. ये बहुत ही सुंदर है और ये कोई सिर्फ कोई social cause नहीं है. It's much more than that. It's a spiritual social cause. Okay, अगर आप इसका प्रोग्राम चाहते हैं in your company, then of course you can also contact our Sundar Gopal Prabhu. He is outside there at the registration table. He is also there, so you can contact him as well. But yes, we must contribute to this beautiful temple coming up. और जो लोग भगवान के घर के लिए contribute करते हैं, भगवान अपने धाम में उनका घर फिक्स कर देते हैं. So who wants a multi-story apartment in the spiritual world after this life? अच्छा समझ नहीं चाहिए लोगों को, ये पे रहने जाते हैं जन्म मृत्यु के चक्कर में. So once we quit this world, we have a spiritual place in the spiritual world when we contribute for a beautiful temple. और शास्त्र बताते हैं, it is considered extremely auspicious to see that the home of God manifesting. भगवान का घर बनते हुए देखना, it is considered supremely auspicious. So इसलिए आप सबसे मेरा ये अनुरोध है, please kindly contribute for ISKCON Vapi, because it is not just a religious place, it is much more than that. It's a spiritual educational center, which is orphanage, which is a school, which is a hospital, which is a counseling center, which is a visa office, which is all in one together, one stop shop. That's ISKCON Vapi. तो आप सबको बहुत धन्यवाद, आप सबने बहुत ध्यान से सुना, अच्छे सवाल पूछे आप लोगों ने, और एक बार फिर से मैं वापी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और प्रेसिडेंट सर कमलेश जी और सतीश जी अभी पूरे जा चुके हैं, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम, और भी जो यहाँ मेंबर्स आए हुए हैं उनको मुझे बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने हमें आमंत्रित किया, और आप प्लीज़ ISKCON वापी के साथ जुड़िए, और भगवान ने आपको इस सेवा का मौका दिया है, इसका पूरा लाभ उठाइए. Okay, so we have our temple president who has gone, Vapi, he's on the way. So we have got 5 more minutes. तो इसमें अगर कोई सवाल पूछना चाहे, you can ask the question. हाँ जी, please. एक पत्रकार ने आपको पूछा था हाँ जी. कि ISKCON वाले ब्रेन वॉश करते हैं. हाँ जी, या. तो जरा उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए. मैं बोल रहा बिल्कुल हम करते हैं, डरके भी थोड़े बोलते हैं, हम करते हैं, हम ब्रेन वॉश करते हैं, क्योंकि ब्रेन डर्टी हो चुका है. इस मीडिया ने हमारा दिमाग डर्टी किया हुआ है, इस मटेरियलिस्टिक एजुकेशन ने हमारे दिमाग को डर्टी किया है. उस ब्रेन को हम वॉश करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. धोबी की सेवा ली हमने भाई, राइट, ये तो मैंने बताया वीडियो में, राइट, हमने धोबी की सेवा ली, पैसा भी मिलता है उसका हमें, बट वी आर डूइंग दिस सेल्फलेसली फॉर द सोसाइटी. तो इसलिए हमें ब्रेन को वॉश करना जरूरी है. जब ब्रेन डर्टी होता है ना, तो हमारी डीलिंग करता है ना, हमारी फीलिंग्स अच्छी होती हैं तो हमारी डीलिंग अच्छी होती है. जब दिमाग गंदा होता है तो हमारी डीलिंग वैसी हो जाती है. So somewhere we need to purify our brains, हमारी intelligence. और देखिए हमारा best of the brain, it goes to the west, it becomes wasted. और इंडिया में भी है, we don't value the values. We value valuables more than the values. But we should value values more than the valuables, right? रावण के केस में क्या है?
Ravan values valuables more than the values, and Shri Ram, he values values more than the valuables. So making a shift from valuing the valuables more than the values to valuing the values more than the valuables is known as brainwashing, and that is what we are doing. Andy, please, yes. Sometimes you mentor someone or things does not work out. So how to deal with that? You mentor somebody. Let's say कि मैंने किसी को कुछ गाइड किया. हाँ. Things work out नहीं होती. हाँ. This is okay. देखिए अगर मैं किसी को गाइड नहीं कर सकता ना, I should ask somebody else to guide. Like for example, जब कैकेयी जब उदास होकर शोक सभा में अपना लेटी हुई है वो, at that time कौन आया उनके पास? दशरथ महाराज. वो नहीं काउंसलिंग करने के लिए आए थे. लेकिन जो दोनों हुआ, पहले ये खड़े थे, ये लेटी हुई थी. अब ये लेटी हुई थी, ये खड़ी हुई थी. अगर मैं मेंटरशिप नहीं कर पाऊंगा तो मैं उसमें उसको बुलाना चाहिए जो मेंटरशिप कर सकता है. आइडली दशरथ महाराज का करना चाहिए था. कहीं कैकेयी बहुत दुखी हो रखी है. अरे मैं काउंसलिंग नहीं करवाऊंगा इसकी, नहीं तो मुझे काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ेगी. तो मुझे वशिष्ठ मुनि के पास जाना चाहिए था. वशिष्ठ जी कैकेयी को थोड़ा समझाएंगे. तो हम जब कभी काउंसलिंग कर रहे होते हैं, जब हमारी काउंसलिंग करने का भी दम नहीं होता, तो कभी कभी फिर हमें काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ती है. कहते लोग बात नहीं मान रहे यार, हम हाल हो गए भाई, हम दुखी हो गए किसी का दुख दूर करते करते. तो दशरथ महाराज के साथ यही हुआ. दशरथ जी को बोलना चाहिए वशिष्ठ मुनि जी ये नहीं काउंसलिंग कर दो. वो खुद काउंसलिंग करने में लग गए. वो कैकेयी थी पहले लेटी थी, ये खड़े थे. पूरी काउंसलिंग में ये खड़ी हुई थी, ये लेटे हुए थे. तो कोई ऐसा हमारे साथ भी होता है. Right? So we should see who can actually counsel, who can really do the mentorship. If not me, somebody else. इस मामले में एक MBBS डॉक्टर हो और सामने वाली की एलिमेंट बड़ी गहरी है. I recommend a specialized person. आप फला के पास जाइए, he is specialized in this. आप ophthalmologist से मिलिए, और एक orthopedic डॉक्टर से मिलिए. I recommend, and that's perfect for you. हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए. Well, I have my own limitations. That's understood. That's perfectly fine. ठीक है जी. और कोई सवाल किसी का? यस. हरे कृष्ण. हाँ जी, हरे कृष्ण पूछिए. प्रभु जी, जैसे कि YouTube में मैं कहाँ से आवाज़? अच्छा हो अच्छा, आपकी भी स्पीच काफ़ी सुनता हूँ और बहुत सारे मोटिवेशनल लीडर्स हैं जैसे कि उज्जवल पाटनी है, विवेक दित्रा जी हैं और सोनू शर्मा जो भी है. सारे सुन के सर हम मोटिवेट तो हो जाते हैं और कुछ पर्टिकुलर टाइम तक फुल मोटिवेट भी रहते हैं, पर सर्टेन टाइम बाद वापस एज यूजुअल वैसे ही काम करते जैसे उसी में उलझ जाते हैं जैसे डेली रूटीन करते हैं. तो इसको कंटिन्यू कैसे मोटिवेट रेगुलर कैसे रहे? वेरी गुड. अच्छा, अब देखो ये दारू पीने वाले लोग दारू पीते रहते हैं. ये ऐसे क्यों कर पाते हैं? जानते क्यों? क्योंकि ये लोग संगति में पीते हैं. ये लोग संगति में पीते हैं. खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तो यार आप में और बैक पाइपर है ना. तो ये लोग दारू पीते हैं, संगति में पीते हैं ये लोग. और साथ में बैठ के मदिरा कथा भी करते हैं. भाई सोडे के साथ ऐसा होता है, गर्म पानी के साथ हो तो ऐसा होता है, नीट पियो तो ऐसा होता है, ऑन द रॉक्स हो तो ऐसा होता है, नमकीन के साथ लो तो ऐसा होता है. वो सारा मदिरा कथा भी करते हैं लोग. भले ही अपनी किडनी सड़ाते हैं, डायलिसिस से आते हैं, लेकिन जिनसे पूछा जाए सर आप दारू कैसे पीते थे? हम संगति में पीते थे, तो हम रेगुलरली दारू पीते थे. सो सेम फिनोमेना अप्लाइज ऑन स्पिरिचुअलिटी आल्सो. आप सीख तो लेते हैं लेकिन आप संगति नहीं करते. यू डोंट एसोसिएट विद द डिवोटीज. तो होता क्या है, कुछ समय बाद फिर वो आपने जो जोश भरा था, सोडा बने थे आप, फिर पानी हो गए. फिर आपको आया उसने थोड़ी गैस भरी, कार्बन डाइऑक्साइड डाले आपने, फिर आप सोडा बन गए आप. फिर थोड़ी हवा निकलती गई आपकी, हवा निकलने के लिए फिर से आप पानी बन गए. तो सोडा पानी होता रहता है हमारे साथ. पर रेगुलरली संगति में अगर हम रहते हैं तो हम सोडा बने रहते हैं. यस, बीच में डोसा भी आता है लेकिन सोडा फिर बने रहते हैं. क्यों? संगति. एसोसिएशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो संगति से मोटिवेशन बनी रहती है. तो जब संगति टूटती है तो मोटिवेशन चली जाती है. सो वी शुड कॉन्स्टेंटली डूइंग एसोसिएशन. जैसे पहले हमारे वैदिक कल्चर यही था, शाम को सब खेती करके आते थे, जितने किसान लगा रहे थे सब शाम को इकट्ठा होंगे एंड दे वुड हियर हरि कथा. रामायण से, महाभारत से, श्रीमद् भागवतम से सुनेंगे. तो रोज शाम को बैटरी चार्ज हुआ करते. इसलिए इंडिया वाज स्पिरिचुअल कंट्री. हमने बंद कर दिया वो. और रात को टीवी देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, Amazon प्राइम वीडियोस, तो बैटरी तो डिस्चार्ज होगी अब आपकी. इंस्पिरेशन का होती है वंस इन अ मंथ फला जी आए थे, सुना, बड़ा मोटिवेशन मिला. उसका फिर हमने फिर से अपना पंचर कर लिया. राइट. पर अगर आप रोज ये डोज लेते रहेंगे जैसे पहले लोग लिया करते थे, इन वैदिक कल्चर पीपल यूज्ड टू टेक दिस डोज रेगुलरली, दे वुड स्टे मोटिवेटेड. पर हम वो लेते नहीं अब.
अब सब कुछ अगर मजा 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 होना चाहिए, मजा होना चाहिए, मजा करो यार, मजा 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 में सारे डिस्चार्ज करते हैं। इसीलिए we are not able to retain it. So कभी कभी we have to always charge ourselves. We should invest or spiritual charging by regular association. ठीक है? तो नियमित रूप से संगति करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी बोलिए जी। प्रभु जी जो नए इस्कॉन जिसको जो लोग इस्कॉन को नहीं जानते हैं ना, तो वहाँ जब कोई डोनेशन लेने जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि इस्कॉन का वापी का पैसा बाहर जा रहा है। तो इसके ऊपर अगर आप कुछ बोलना चाहेंगे तो। कोई बोले ना इस्कॉन जो है पैसा बाहर भेज रहा है, उससे उसका मोबाइल फोन पूछो, कहता आपका फोन क्या है, कहता ओप्पो, कहता तूने चाइना पैसा भेज दिया। तो हम फोन को से सवाल करते हैं, रियलमी, ओप्पो, एमआई और ऑनर, हुआवी, वीवो, ये सब चाइना पैसा गया। आप बता हम इंडिया से कितना पैसा भेजते चाइना? 250 लाख करोड़ रुपए। कितना? 250 लाख करोड़ रुपीस हम इंडियंस चाइना भेजते हैं, हम बिकॉज वी आर यूजिंग देयर गुड्स सो मच। इवन एक स्टिकर आया था, डोंट यूज चाइनीज प्रोडक्ट्स। पता है कहां छपा है? चाइना में। मतलब हम ये स्टिकर भी नहीं छाप रहे, डोंट यूज चाइनीज प्रोडक्ट, ये भी वहां छप के आया है, और वो भी उस्ताद लोग छाप दिए उन्होंने। तो अगर वो बोलता है इस्कॉन पैसा बाहर जाता है, उसको बताओ तूने चाइना भेज दिया पैसा। चाइना क्या करता है? चाइना देता है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान आप उग्रवाद फैलाइए इंडिया के अंदर। इंडियंस पैसा दे रहे हैं हमको, देखो हमारा वीवो खरीदते हैं वो, हमारा ओप्पो खरीदते हैं वो, हमारा रियलमी खरीदते हैं वो, हमारा ऑनर खरीदते हैं वो, वन प्लस खरीदते हैं, ये सब चाइनीज ब्रांड है। तो पहले बात तो ऑफ कोर्स इस्कॉन का पैसा चाइना नहीं जाता, ना यूएस जाता है, लेकिन हाँ चाइना से आता जरूर है। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, हमारा मायापुर में मंदिर बन रहा है बंगाल में, उसकी 30% डोनेशंस चाइना से आती है। तो चाइना वाले मंदिर बना रहे हैं इस्कॉन का बंगाल के अंदर, बिकॉज वी आर बिल्डिंग अ वेरी बिग टेंपल। 800 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो, इट्स ह्यूज। अभी 300 करोड़ लग चुका है, 500 करोड़ और चाहिए, लेकिन पैसा उसमें 30% कहां से आ रहा है? चाइना से। चाइना से जिससे पैसा कोई बाहर नहीं आ रहा। आप सोचिए यहाँ भी अगर मंदिर बनना है 15 करोड़ 20 करोड़ का, सारा पैसा हम भेज देंगे विदेश में, तो ये मंदिर कौन बनाएगा? हमारे ताऊ जी। अभी कोविड के समय में जब हमने प्रसाद बांटा, हमारा हर रोज का खर्चा था 1 करोड़ रुपए, क्योंकि हम रोज 5 लाख प्लेट बांट रहे थे। कितनी? 5 लाख प्लेट। एक प्लेट पड़ती है 20 रुपए की, उसकी थाली, उसकी कुकिंग, उसकी प्रिपरेशन, उसको ट्रांसपोर्ट करना, लेबर वगैरह से मिला हम लोग की एक प्लेट पड़ती है 20 रुपए की। तो हमने अगर 5 लाख प्लेट बांटी अगर हर रोज, जो कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स उन्होंने काउंट किया है 5,16,000, तो हर रोज का खर्चा कितना हुआ? 1 करोड़। Every day ISKCON was spending 1 crore rupees to feed the Indians during COVID. ये पैसा यहाँ खर्च कर देंगे तो विदेश कैसे भेजेंगे फिर? खर्चा तो यहीं पे हो गया सारा, खिला दिया इंडियंस को। हमें सोचना चाहिए ये लोग भूखे मरे, पैसा भेजो अमेरिका, ऐसा करना चाहिए, राइट? अब वो हमारे मैं ISKCON द्वारका से दिल्ली से हमारे मीठे कमलोचन प्रभु जी आ चुके हैं। प्रभु जी हार्दिक स्वागत है। प्रभु जी टेंपल विजिट फॉर ISKCON वापी। So he is spearheading the project of making a beautiful palatial temple for all of you in ISKCON वापी। So प्रभु जी का हार्दिक स्वागत है। Yes. So कोविड के समय में अभी जब हमने फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया, हम लोग आज भी उधारी में दे रहे हैं, आपको पता है? हमने जिन वेंडर्स हमने लिया था, भैया आटा दे दो, दाल दे दो, चावल दे दो, हमें उन्होंने थोड़ी गाली भी निकाली, भाई पैसा कब दोगे? अरे भाई डोनेशन धीरे धीरे आएगा। इवन टुडे आल्सो वी आर गिविंग, कभी इसको 2 लाख देते हैं, कभी 1.5 लाख देते हैं, और उधार होता कितना हमारे ऊपर? करोड़ों का। किसी वेंडर के पास 4.5 करोड़, किसी का 7 करोड़, किसी का 5 करोड़, उधारी पे जी करके हमने इंडियंस को प्रसाद खिलाया। ये ISKCON ने किया। तो जो खुद उधारी में जीते हैं वो पैसा बाहर भेजेंगे, और उधारी तो छोटा मोटा नहीं है, करोड़ों का। और शुरू शुरू हमने जो गालियां खाई मैं बोल नहीं सकता, मतलब हाई फाई वाली जो गालियां आती है, हाई फाई जो होती है ना, टॉप नॉच, हम कहते हैं हाँ जी गाली दीजिए नो प्रॉब्लम, लेकिन हमें सेवा तो करनी है इंडियंस की। इतना प्रसाद खिलाया, इसके पीछे कितनी मेहनत थी। और कोविड के समय में हम लोग खुद गए हैं प्रसाद बांटने के लिए। हमको कोविड हो सकता है, हम मर सकते हैं। हमारे यहाँ डिवोटीज गए एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फूड एट द रिस्क ऑफ देयर ओन लाइव्स। कोविड तो ऐसे फैलता है, किसको पकड़ ले कुछ नहीं पता, लेकिन भगवान की दया से हमारे यहाँ एक भी कैजुअलिटी नहीं है, बिकॉज वी आर डूइंग सेवा। तो जब वो बोले भाई ISKCON का पैसा बाहर जाता है, विदेश जाता है, अरे भाई
अच्छा ये बताओ, हम लोग सुबह सुबह मंगल आरती करते हैं 4:30 बजे, वैसे यहाँ 5:30 बजे हम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ 4:30 बजे करते हैं हम लोग। सुबह सुबह 4:30 बजे मंगल आरती करने की जरूरत क्या है भाई? ये पैसा इकट्ठा करने के लिए पूरी दुनिया सो रही है, हम भी सोए, हम भी उठे 7 बजे उठे, हरि बोल आओ पैसा लाओ। ये 3-3:30 बजे उठे, तो पागलपन क्यों कर रहे हैं हम लोग फिर? इट डजंट मेक सेंस एट ऑल। और लॉर्ड कृष्णा को सामने रख के पैसा बिल्कुल नहीं आ सकता, ही इज वेरी कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी। वही गोपियां आएंगी 10,000 करोड़, 16,108 पत्नियां आएंगी, चोरी करे खाए, अरे भाई। So how can we have Krishna in front to make people fool? भाई ऐसे व्यक्ति हो जो सीधा साधा हो, राम जी बड़े सीधे साधे। उनके साथ ये भाई चुपके तीर क्यों मारा, वाली को सीता मैया को क्यों त्याग दिया। इस्कॉन के टेंपल होने चाहिए शेरवाली माता के मंदिर, नो लीला, नो कंट्रोवर्सी, पैसा ला, नो प्रॉब्लम। But we have Lord Krishna because he is declared as supreme Lord in the scriptures. So Lord Krishna is there in the front. और हम कौन सी बुक पढ़ते हैं? ये भगवद गीता। भगवद गीता से लोग डरते हैं, इसको पढ़ लिया फिर हम घर छूट गया तो छूटता नहीं अलग है, पर एक ऐसी इमेज है गीता को ले जाके, पढ़ ले तो हम फिर हमारा घर छूट गया तो। हमें बुक्स निकालनी चाहिए। इफ यू थिंक यू हैव मैरिड अ रॉन्ग पर्सन, इतनी बिकेगी क्योंकि 90% लोग ही मानते हैं, थोड़ा जल्दी वही मानते। ये तो 500 रुपए की बेचेगी ना, लोग खरीदेंगे। दिस बुक इज फॉर यू इफ यू थिंक यू हैव मैरिड अ रॉन्ग पर्सन। पैसे बुक निकालते हैं लोग, नहीं भगवद गीता भागवतम। लोगों को तो भगवद गीता और भागवतम में अंतर नहीं पता, अरे ये दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है। चैतन्य चरितमृत तो लोग नाम नहीं सुना हुआ, ये कोई कौन सा नया दर्शन निकाले। So ISKCON is actually a selfless organization जो कि निस्वार्थ भाव से पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रही है। देखिए सवाल है सनातन धर्म, नॉट बाबा जी की पोथी। सनातन धर्म का प्रचार इससे पहले इतने भव्य तरीके से पूरी दुनिया में आज तक नहीं हुआ जो कि ISKCON ने किया। हो जाएगा लोग नाम सुन लेते बस इंटरनेशनल, और ये जरूर विदेशी संस्था है। एक बार हमारा लाइफस्टाइल देखिए आप, जितने इंडियन, जितना हम लोग इंडियंस हैं ISKCON के डिवोटीज, इवन हमारे गृहस्थ डिवोटीज ज़्यादा देखें, यू वुड एक्चुअली ये धोती कुर्ता इंडिया एक इंडियंस को पहनाया किसने? ISKCON ने बनाया। धोती कुर्ता लोग क्या बोलते हैं, अरे तो पंडित जी। लेकिन आज हमारे सब डिवोटी धोती कुर्ता, ये पैंट शर्ट पहना हमारा कल्चर नहीं था, ये धोती कुर्ता पहने हमारा कल्चर। ये पंडित जी के कपड़े नहीं है, ये घेरा वगैरह भले दैट्स अनदर थिंग, लेकिन पहले सब धोती कुर्ता पहनते थे। पर धोती कुर्ता आज इंडियंस कौन पहना रहा है? ISKCON पहना रहा है। So we are absolutely hardcore Vedic organization, and we are teaching the science of happy living as per scriptures. और कितने लोग खुश हुए भी हैं। वैसे मैं आपको I'm just sharing the data of Delhi. दिल्ली के अंदर 1300 से ज्यादा सुसाइड केसेस बचाए हैं ISKCON ने, and more than 2300 डिवोर्स केसेस बचाए हैं ISKCON ने। और हम लोग डेटा मतलब ये we don't share all of this कि हम अखबार में दें, शो ऑफ करें, दिखावा करें। But actually, when somebody gets into the root of the activities which we are doing, we are helping humanity big time. And such genius people, they are selflessly giving their lives in ISKCON. Wow! आप साधु संतोष मिलेंगे ना? One of the great sadhus is here with us, Kamal Loshan Prabhu ji. Amazing. प्रभु जी marine engineering जानते हैं। एक बार आप अगर को मर्चेंट नेवी में जाए, मर्चेंट नेवी means पैसा ही पैसा है भाई। प्रभु जी ने छोड़ करके आज गेरे वस्त्र में आज सैकड़ों यंगस्टर्स को, यूथ्स को, गृहस्थास को ही इज इंस्पायरिंग। वाओ, मीरा रोड में जाके देखिए उनकी मेहनत से बना इतना सुंदर मंदिर है, राधा गिरधारी मंदिर। वाओ, नाउ ही इज इन ISKCON वापी आल्सो, एंड दिस इज एक्सपैंडिंग, द फैमिली इज एक्सपैंडिंग। बाहर होता है फैमिली मतलब हम दो हमारे दो, हमारा फैमिली प्लानिंग है हम दो हमारे 2 करोड़, दैट्स आवर फैमिली प्लानिंग। So ऐसे कई such genius people, such pure-hearted souls, saintly people, they are dedicating their lives in ISKCON. अपना करियर ऐसे खत्म करेंगे ताकि हम पैसा विदेश भेज सकें। So certainly ये आया पता कहाँ से? ये हमारे राजीव दीक्षित जी ने निकाला है। राजीव दीक्षित जी का वैसे बहुत सवाल करता हूँ कि गौ रक्षा करना बहुत अच्छा बोला है, लेकिन एक जगह वाकई में उनसे गड़बड़ी हुई, वो है रिगार्डिंग ISKCON। जब ये संस्था है ISKCOन, इतना पैसा तो कोलगेट कंपनी नहीं भेजती जितने ISKCOन भेज देती है। सर आपने कभी आगे देखा? And how much he served the humanity? So राजीव दीक्षित जी से ये निकला है और कुछ नहीं। और क्योंकि थोड़े से बड़ा बोले थे इसलिए कुछ उनके साथ हो गया बेचारे के साथ, क्योंकि किसी का मन ज्यादा दुख गया तो राम नाम सत्य है।
सत्य बोलो सत्य है, हम उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं हालांकि, बट द पॉइंट इज दैट कभी कभी गलत इन्फॉर्मेशन इस तरह से आया है। इफ समबडी एक्चुअली गेट्स इनटू द कल्चर ऑफ ISKCON, हम लोग कैसे हैं, तो उसको पता लगेगा वी आर सो प्योर इन आवर एक्टिविटीज, इन आवर कॉन्शियसनेस, इन आवर फीलिंग्स, इन आवर डीलिंग्स। इट्स अ प्योर ऑर्गेनाइजेशन। आइए पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। सो क्योंकि प्रभु जी यहाँ पर आ चुके हैं, हमारा बड़ा सौभाग्य है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रभु जी कैन काइंडली कम हियर एंड ब्लेस अस विद हिज काइंड वर्ड्स। हरे कृष्णा। सो पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर हिज ग्रेस कमल लोचन प्रभु। Very grateful to Leela Prabhu for taking his time to come to वापी। वापी आने के लिए उनको बहुत आभार व्यक्त करेंगे एक बार हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। He is our superstar of ISKCON, very famous, and he knows how to give the pure Vedic thought in the modern language। जो आधुनिक भाषा है, उस भाषा में जो हमारे जो वैदिक सिद्धांत है उसको प्रस्तुत करने का उनका भगवान के द्वारा प्रदत्त एक बहुत सुंदर कला है, और आपने उनके मुख से सुना है। तो मैं भी भागवत कथा हो रही है महेश भवन में, तो रोज़ 2 तारीख तक है, अभी भागवत कथा का समाप्त करके इधर आया हूँ। I just came after finishing a भागवत क्लास। शाम को भी गीता का क्लास है उधर, हर रोज़ है कार्यक्रम। ये महेश भवन चला में है, मुक्तानंद मार्ग में। आपको इन्विटेशन कार्ड मिल भी गया होगा उस विषय में। रोज़ सुबह से शाम तक कार्यक्रम है, आप उसमें भी आइएगा। खास करके हमारे बहुत सारे कार्यक्रम हैं उधर। आखिरी जो 2 दिन हैं, एक फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव भगवद गीता कोर्स, 2 very important subjects, science of soul and law of karma। These are first and second। It will be very good beginning to the so-called new year, though we are not supposed to celebrate this new year because it's not a new year at all। Our new year for civilizations, not only in India but around the world, the new year was actually celebrated in March। That is Gudi Padwa or Ugadi। Anyhow, that is a different subject। So we are having a lot of programs. You are all welcome to attend the program। We have a nice beautiful pandal there. Prasadam will be served to everyone, as he is told that ISKCON distributes prasadam even at the cost of taking loan from others। Actually, it is said in the scriptures, idam shariram paropakaramyavartham। This body is actually meant for others। ये दूसरों के लिए बना है। तो ये शरीर के द्वारा दूसरों को हम जितना हो सके उतना अगर उपयोग में आता है हमारा ये शरीर दूसरों के लिए, तो हमारा ये शरीर हमारा जीवन सार्थक है, ऐसे ही मानना चाहिए। मैं खास करके इधर आया हूँ, एक घटना है, एक बात है। ये सारे जितने भी कॉर्पोरेट में हैं या बिजनेस में हैं या कोई टॉप लेवल मैनेजमेंट में हैं, उनको ये एक छोटी सी एक बात मैंने सीखा है, भागवत कथा में एक श्रोता से सीखा है, उसको शेयर करता हूँ हमेशा, खास करके बिजनेस एरियाज में जो हैं। एक बार भिलवाड़ा में भागवत कथा कर रहा था, वैसे उस शहर के जो प्रमुख लोग आके स्वागत करते हैं, स्वागत किए। तो पूरा कथा होने के बाद एक वृद्ध व्यक्ति मेरे पास आके कुछ बताने लगे। तो उन्होंने कहा कि मैं तो वैसे आपको 5-10 मिनट स्वागत करने के लिए आया था, लेकिन अच्छा लगा तो मैं बैठ के पूरा भागवत कथा सुना। तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी जब मरने के सानिध्य में थे, शरीर त्याग करने वाले थे, उन्होंने मुझे 3 बातें कहा। व्यापारी के परिवार के हैं। तो पहली बात उनके पिताजी ने कहा, वो भी 80-90 साल के थे, उनके पिताजी मतलब कितने वृद्ध होंगे, देखिए कितने समय पहले की बात है। उन्होंने कहा, बेटा खूब कमाना पैसा, बहुत पैसा कमाते हो। तो दूसरा बात, बड़ा आश्चर्य की बात है,
जो सारे शास्त्रों का सार को इतनी सरल भाषा में उन्होंने बताया। हो सकता है वो संस्कृत में ज्ञान हो ना हो या शास्त्रों का ज्ञान हो ना हो। उन्होंने कहा बेटा खूब पैसा कमाना, लेकिन कभी भी गलती से भी ये मत सोचना कि ये पैसा तुम्हारा है। गलती से भी मत सोचना ये तुम्हारा है, तुम केवल उसके रखवाले मात्र हो। हाँ? वो बात सुन के मुझे ऐसा लगा कि इतना भागवत किया, इतने गीता के ऊपर इतना प्रवचन दिया, इतना सरल तरीके से ये जो ज्ञान है ना, सरल भाषा में आज तक मैं प्रस्तुत नहीं कर पाया। वो वृद्ध व्यक्ति को पिता ने भारतीय संस्कृति में जो पला पड़ा है ना, उन्होंने इस प्रकार समझाया। देखिए कभी गलती से मत सोचना ये पैसा तुम्हारा है। तो तीसरी बात और आश्चर्य की बात है और सुंदर बात है, उन्होंने कहा कि हमारा व्यापार से, हमारे वजह से या हमारा निमित्त मान के, हमारे निमित्त की वजह से, निमित्त होने की वजह से अगर 10 परिवार का भला होता है, उसको देख के संतुष्ट हो जाए। देखिए ये मैं कोई शास्त्र के श्लोक की बात नहीं कह रहा हूं, कोई साधु संत की बात नहीं कह रहा हूं। एक व्यापारी जो भारत देश में जन्म लिया है, ये भूमि का प्रभाव है, ये भूमि का प्रभाव है। इधर का जो इस मिट्टी का प्रभाव है, वो जन्मतः उस कुल में उद्धर्म है, उस कुल में उद्धर्म है। दुर्भाग्य की बात है, हम पाश्चात्य सभ्यता की ओर जा रहे हैं, इस वजह से उस धर्म को भूल रहे हैं। जब धर्म भूल जाते हैं, अर्थ अनर्थ होता है और कामनाएं जो हैं वो पूर्ण नहीं होता। मोक्ष की बात तो दूर छोड़ो, धर्मार्थ का मोक्ष संबंध ऐसा है। धर्म के आधार पे अर्थ है, अर्थ के आधार पे कामनाएं हैं और उनके आधार पे मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ ये है कि दुखों से निवृत्ति है। क्या सुंदर बात है, खूब धन कमाना। दूसरा, कभी ये मत सोचना कि ये धन मेरा है, ये संपत्ति मेरा है। कभी गलती से मत सोचना मैं केवल रखवाला मात्र हूँ, रखवाली मात्र हूँ और अंततः ये धन से कुछ लोगों का भला हो जाए। बस उस चीज को देख के वो तुम्हारा आनंद का कारण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने BMW खरीदा वो आनंद का कारण नहीं होना चाहिए। मेरी वजह से अगर 10 लोग सुखी है, ये भारतीय संस्कृति है। दर्शन शास्त्र बहुत बड़ी चीज है, कथा बहुत बड़ी चीज है, बाकी वो तो बात में रखिए। ये मिट्टी का प्रभाव है, जिस मिट्टी पे हम चलते हैं इससे भारतीय बनते। भारतीय बनने का अर्थ क्या है? भारतीय मानसिकता धारण करना, यही मानसिकता है। खास करके व्यापारी वर्ग का यही मानसिकता होना चाहिए। कोई रुकावट नहीं है, जितना कमाना है कमाओ, क्योंकि आपका जन्म कमाने के लिए होगा, खास करके व्यापारी वर्ग का। और दूसरी बात रिपीट करना, तीसरी बात, क्योंकि 3 बार अगर कोई कहता है तो उसको याद जरूर हो जाता है। वो वृद्ध व्यक्ति का जो पिताजी हैं, उनका बात है कि उन्होंने कहा अपने पुत्र को, कभी गलती से मत सोचना ये मेरा है। और तीसरी बात, हमारे से, हमारी वजह से 10 लोगों का भला होता है, उसको देख के तुम सुखी होना। खैर और भी आगे बात कहा था मैंने, भागवत कथा के संबंध में कहा, क्योंकि अभी उसी बात को भागवत कथा में कहा था। मैंने कहा था उनके पुत्र को, मेरी इच्छा है, मैं तो बहुत मेहनत करके व्यापार खड़ा किया, मेरे पास समय नहीं मिला, लेकिन मैं भगवान के सामने संकल्प लिया था, मेरा व्यापार अच्छा होता है तो मैं भागवत कथा कराऊंगा, 108 कराऊंगा, लेकिन मैं भी नहीं करा पाया। हमारा व्यापार तो बढ़ चुका है, अभी 500 करोड़ का हो चुका है, कि अभी तुम मेरा ये इच्छा 108 भागवत कथा कराना। तो ने कहा मैंने कराया, मैंने पिताजी का आज्ञा को पूरा किया, उनकी इच्छा को पूरा किया। तो ये माइंड, मानसिकता है, हमारी मनोभाव, वो सबसे महत्वपूर्ण है। हमारा माइंड क्या है, हमारा एटीट्यूड क्या है, वो महत्वपूर्ण है। क्या करते हैं, क्या प्राप्त किया, वो महत्वपूर्ण नहीं है। एक व्यक्ति जो है वो मंदिर में थोड़ा सा जोने में खिचड़ी प्राप्त कर संतुष्ट हो सकता है। एक व्यक्ति जो है बड़ा 5 स्टार होटल में जाके बहुत बड़ा जो भी उनको खाने के लिए चप्पन वो खाने के बाद संतुष्ट नहीं हो सकता। एक व्यक्ति था, मैं उदयपुर से हवाई जहाज में आ रहा था, तो मेरे एयर सीट पे बैठा था, बाजू का एयर सीट में बैठा हुआ था, और एक तो ऐसे गुस्से में था, बहुत परेशान था। तो जैसे उड़ान उड़ी तो छोटा फ्लाइट है, उस वजह से केबिन क्रू आई,
क्या चाहिए, मैं कहा मुझे कोई जूस चाहिए। तो प्रत्यक्ष देख रहा हूँ वो जूस दिया, उसने पिया तो तुरंत गुस्सा कर दिया, मैंने जो बोला वो नहीं दिया, ये जूस नहीं दिया, तुमने ये जूस दिया, क्या समझते अपने आप को, मैं तो ऐसा आपका एयरलाइंस को पूरा खरीद सकता हूँ, मैं तो 1000 करोड़ कंपनी का मालिक हूँ, ऐसा एकदम बिल्कुल ऐसा चिल्लाने लग गया कि तो वैसे तो उनको चार्टर्ड फ्लाइट में आना था, लेकिन उनका फ्लाइट खराब हो गया, तो ये जो ये दूसरा जो एयर इंडिगो में आया, तो किसी न किसी तरीके से उधर का जो चीफ कैबिन क्रू है उन्होंने शांत किया उनको, तो शांत किया, फिर भी उनके अंदर तो ऐसा आंदोलन हो रहा था, तो बार बार कहता मैं चाहे तो कंपनी खरीद सकता हूँ, जानते नहीं मैं कौन, पता नहीं मेरा क्या है, आज ये फ्लाइट में बैठना पड़ा, तो क्यों इतना डिस्टर्ब हो गया, 32,000 फीट के ऊपर उसको जो जूस चाहिए था वो नहीं मिला, वो नीचे उतरने के बाद वो उस जूस का स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर सकता है। अब देखिए इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या स्थिति है मानसिकता, देखिए जो मिला उससे प्रसन्न होना, प्रसन्न चित्त रहना, ये शिक्षा नहीं दिया, ये शिक्षा हमने प्राप्त नहीं किया, तो क्या फायदा हमारा बड़ा व्यापार का, हमारा बड़ा पोस्ट का, हमारा बड़ा पदवियों का, हमारा बड़ा संपत्ति का, कोई फायदा नहीं। ये शिक्षा गीता देता है, प्रसन्न रहना, संतुष्ट रहना। तो दिस इज द टीचिंग ऑफ गीता। संतुष्ट स्तुतम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय, निश्चयता भी है, संतुष्टि भी है। तो आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार है, उस भंडार को प्रसार प्रचार करने वाला इस्कॉन की संस्था केंद्र है, इधर वापी में बन रहा है, कोपरली रोड में, दिल्ली पब्लिक स्कूल के बाजू में, लेकिन दिल्ली पब्लिक स्कूल वाले एडवर्टाइज करते इस्कॉन के बाजू में, हमको कहना पड़ता है दिल्ली पब्लिक स्कूल के बाजू में जो भी हो, तो उधर एक बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो भी मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो मेरा एक निवेदन है आप सब उसमें जुड़िएगा, यथाशक्ति उसमें योगदान दीजिए, ताकि शीघ्र ये मंदिर का निर्माण जो है वो जल्दी से हो जाए। वो हरे कृष्णा, इसी संदेश की जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद एचबीएस अमोघ लीला प्रभु और एचबीएस कमलोचन प्रभु जी का। अभी हमारा प्रोग्राम फिनिश हो रहा है, पर भूलें ना सभी भक्तों के लिए प्रसाद है, जो भी अटेंडीज हैं सबके लिए प्रसाद है, और प्रसाद का रास्ता ये बीच में है, प्रभु जी खड़े हुए, इधर से भी जा सकते हैं, उस रास्ते से भी जा सकते हैं, सभी के लिए प्रसाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक अमोघ लीला प्रभु जी का महेश्वरी भवन में प्रोग्राम है, सब्जेक्ट है लव द गोल ऑफ लाइफ, तो आप लोग वहाँ पे भी अटेंड कर सकते हैं शाम को 5 से 7। और उसके बाद भगवद गीता के क्रैश कोर्स चल रहे हैं, आज दूसरा दिन है, शाम को 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक वो चलता है, उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति पर्सनली प्रभु जी से मिलना चाहते हैं तो प्रभु जी अवेलेबल हैं, यहाँ पे आके आप उनसे मिल सकते हैं। बाकी सभी भक्तों के लिए प्रसाद